and Dr. Pradeep ji, Dr. Reena ji, Rekha ji, Dimple ji, and all. Akanksha ji, I welcome all. We discuss poetry. We have been discussing this poetry, and as we know that language is a very unique gift to man. Only human beings are blessed with this thing that we can communicate by language. We can express anything through language. Although animals can also express, but we human beings have this mastery, and this is a unique phenomena. Otherwise, the human beings and animals biologically are almost the same. We have around 3 million cells. Animals are also have 3 million cells. But why we are unique? Because we are blessed with this gift of God, that is language. And in language there is another gift, that is art of poetry. किस नाम से? Art of poetry is a unique gift of God. And by the help of art, कविता की मदद से we can express everything. We can express our love. We can express our emotion. We can express our feeling. We can express our pain. We can express our history, geography, sociology, flora, fauna, animals, nature, water, anything can be expressed. And this is another gift to us. And this poetry is as old as language. Our ancient, you can say, people used to sing. जिसे गांव में क्या बोलते हैं, ओरल ट्रेडिशन, मौखिक रूप से रास गाना, रसिया गाना, अदर थिंग्स. So thousands of years back, this tradition started. Even they were illiterate, they were laymen, but they were masters without any education, without any knowledge, without any support. They created unique poetry. And slowly this art kept on developing. Now we are very rich. On the one hand, we have one line poem like haiku. Within 3 words, we can express this. This technique, this art started from Japan. And in Japan, only in 3 words, in English, they can write poems. And we have, as long as Mahabharata is there, which has around 2 lakh lines. It is supposed to be the world's oldest epic. So it has around 2 lakh lines. And we have haiku on one side. So poetry is a very rich tradition. Poetry is a very rich art. Poetry is a very rich history. And we human beings are immensely benefited by this. And now haiku has changed the tradition. Anybody can write a poem. They say, you listen to me. The old pond, the word of dew. According to haiku rules, it is a poem. The taste of rain over the wintry night. This is also a poem. अब आप हिंदी में देखिए एक छोटी सी पोएम. शमशान की दीवारों में मिट गई सब लकीरें. दिस इज ए पोएम. शमशान की दीवारों में मिट गई सब लकीरें. And according to the haiku rule, this is a poem because it is more than 3 words. Even if it had 3 words, so it will be a poem. अब you can enlarge it like that. एक साथ सब लेटे हैं राजा और फकीर. एक साथ सब लेटे हैं राजा और फकीर. This is a complete poem which covers everything according to the rules of the poetry. Now you see another thing. मंदिर के बगीचे में खो गई सब शमशीरें. शमशीरें here means division, wealth, power, energy, all are equal, or you can say all are useless. साथ साथ बैठे हैं मालिक और फकीर. Both are sitting together. So although they are haikus, but they are complete poem according to the rule of poem. So this is a very unique feature of our poem. Now you see Mahabharata. Foreign writers, English writers, European writers, they were amazed to know that whatever they thought, it is there in Mahabharata already.
whatever is there in this universe, जो भी इस दुनिया में आप सोचें, you think about psychology, you think about atom bomb, you think about regeneration, you think about anything, हवाई जहाज के बारे में सोचिए, it will be there in Mahabharata. So a European writer, or he was also a politician, Sir William Attlee, he said, whatever is there in this universe is in Mahabharata, and whatever is not there in Mahabharata is not there in this universe. दुनिया में जो भी कुछ है वो महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है. And you know, at that time, how they read, how they write, nobody knows. But they created they wrote the history of this universe in Mahabharata. What is this? This is poetry. Mahabharata is also a poetry. History written in the form of poetry, geography written in the form of poetry, warfare written in the form of poetry, gambling written in the form of poetry, love is written in the, cheating is written in the form of poetry. So poetry is such a unique thing. And another unique thing is about poetry is the oldest form of art. Poetry is the oldest form of art. We think about the civilization. So generally it is believed that first human beings might have expressed their emotions through poetry. They were unread people, they were illiterate people, although there is no evidence. But it is the oldest form of art. Even before writing started, even before education or anything started, poetry was there. Hello? नेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा है. हाँ, आकांक्षा जी प्लीज देखिए उन्हें, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है किन्हीं का. अभी हुआ है, देखिए. नहीं हो गया है, तभी तो आवाज आ रही है, इसका मतलब हो गया है. कनेक्ट देखो. हाँ हाँ हो गया हो गया. हाँ हो गया. I can see you. Okay, sir. Now I stop myself. Our guest and the main speaker has come. And now, Reena ji, you take over the charge. Hello, Yeah. Reena ji. थैंक यू शर्मा सर. Okay, welcome. मैं प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. वेलकम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. आपके औपचारिक परिचय के लिए मैं रेखा जी को आमंत्रित करती हूँ. रेखा जी. सभी को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं हमारे एक स्टूडेंट हैं शिशिर, शिशिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सेल्फ कंपोज पोएम जिसका टाइटल है काश तुम देख पाते, वो हमें ये अपनी पोएम हमारे सामने रखेंगे. शिशिर. रेखा जी, शिशिर अगर नहीं है ना तो आप, मेरे ख्याल में शायद लेक्चर अगर हम शुरू कर दें तो बच्चों को फिर पोएम जो है वो बाद में देख लेंगे. ठीक है, आप औपचारिक परिचय के साथ शुरुआत कर दीजिए. हाँ ठीक है. We will take both these students, we will invite by the end of the session. ठीक है मैम, ठीक है. आज हमारे बीच संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान JNU के प्रोफेसर माननीय हरिराम मिश्र जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं. आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हैं और वर्तमान में अमेरिका में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज डार्टमाउथ USA में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाराणसी से शास्त्रों की शिक्षा लेने के बाद प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने शोध कार्य किया है.
आप संस्कृत व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि विषयों में निष्णात हैं। आपके निर्देशन में आयुर्वेद विज्ञान, पर्यावरण, सतत संधारणीय विकास की प्राप्ति, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की समुचित व्याख्या हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समसामयिक सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विषयों पर शोध कार्य हो चुके हैं और हो रहे हैं। आप अक्सर अपने राष्ट्रवादी और बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों के विरोध में शिक्षक समुदाय से आपने सबसे आगे आकर मुखर विरोध किया था और आज भी जेएनयू या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति अपना विरोध उच्च स्वर में दर्ज कराते हैं। आपने अमेरिका, कनाडा, ट्रिनिदाद और टोबैगो, यूरोप जैसे देशों के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में जाकर व्याख्यान दिए हैं और विद्वानों के साथ संवाद स्थापित किए हैं तथा विद्वानों इस क्षेत्र में आप छात्रों को भी लगातार प्रेरित करते हैं। आज सौभाग्य से हमें ऐसे महान व्यक्तित्व का व्याख्यान सुनने का अवसर मिल रहा है। सर, इस मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया अपने ज्ञान से हमारे सभी श्रोतागणों का मार्गदर्शन करें। माननीय सर। आप सबको नमस्कार। मुझे थोड़ा विलंब हुआ, नेटवर्क नहीं आ पा रहा था और माफ करिएगा अगर बीच में चला जाए, क्योंकि आज पता नहीं क्या है, वाईफाई भी नहीं काम कर रहा है, मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत लो है, तो कहीं कभी कभी लग जा रहा है, कभी कभी नहीं लग रहा है। ये वर्चुअल वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है। अभी जो ये समस्या है इसके साथ भी हम जूझ रहे हैं और कोविड की समस्या से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो फिर भी हम आपस में इन माध्यमों से मिलते हैं, बात करते हैं और इनके माध्यम से जो ज्ञान और विज्ञान की प्रक्रिया है उसको हमने जीवंत बना रखा है और छात्रों के बीच में पहुंच रहे हैं लगातार। तो ये एक आपका जो प्रयास है ये सराहनीय है। श्रद्धानंद कॉलेज की तरफ से इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि बच्चों को आपने इंगेज कर रखा है या टीचर्स को भी इंटरेक्शन का मौका है। तो ये इस दृष्टि से ज्ञान विज्ञान की जो प्रक्रिया है इसमें सबकी सहभागिता हो और सब अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे मन के साथ आगे बढ़े, इन शुभकामनाओं के साथ मैं काव्य क्या है इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने विचार विमर्श के स्वरूप में फॉर्म में मैं रखूंगा बातें अपनी। तो सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोकूंगी। हाँ हाँ हाँ, बताएं ना, आवाज नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा ना कैमरा सेट कर लीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रही। मैं दिखाई नहीं सर, कैमरा थोड़ा सा आपको सेट करना होगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे। अब ठीक है सर, अब ठीक है सर बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, जैसा मेरी आपसे ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर, अब बोलिए। अब ठीक है सर, थैंक यू सर। पर अब उनकी आवाज नहीं आ रही है रीना जी। आकांक्षा जी देखिए जरा। सर कनेक्टेड तो है बट आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वो पहले ना फेस नहीं क्लियर हो रहा था तो इसलिए वो शायद। वीडियो बंद पॉज ही करा देती हूँ। रीना मैम, आप उनसे दोबारा ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं आपको ना 2 मिनट कॉल बैक करूंगी। हाँ, वो कह रहे थे ना, असल में वहाँ वाईफाई भी नहीं चल रहा है दोबारा, ऐसा कुछ है, आज नेट की दिक्कत बता रहे थे। जी सर।
जब तक सर ज्वाइन बैक करते हैं, क्या कोई जो 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज अपनी पोएम्स प्रेजेंट करनी थी, इज एनीवन रेडी? शिशिर? हाँ हाँ हाँ, बात कराओ। शिशिर बेटा, आपका माइक वर्क कर रहा है क्या? विकास, आर यू देयर? मैम विकास इज देयर, तो Vikas, please Shishir ka unmute mic yourself, on. beta, and you can narrate your poem for us. Vikas? Yes, beta, please unmute yourself. यस मैम, एम आई ऑडिबल? जी, बताइए। या हाँ जी बेटा, बोलिए। जी। सभी अध्यापक गणों और मेरे साथी विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। कविता का शीर्षक है शिक्षक। तू डाल डाल मैं पात पात, तू मेरा राम मैं हूँ निषाद, तू है रचनाकर हे विद्यादात, स्वीकार कर मेरा प्रणिपात। तू है, तू ही है जो समझाता है, तू ही है जो मन को लुभाता है। हाँ मानता हूँ करता हूँ मैं गलती कई, पर तू ही तो है जो हर बार मुझे कुछ नया सिखाता है। अच्छा लगता है तुझसे मिलकर, तू भी तो मुझसे रोज ही मिलता है। कभी डांट कभी प्यार, मेरी उम्मीदों का पौधा आखिर तेरी ही रोशनी में तो खिलता है। देर लगेगी मगर, देर लगेगी मगर, मैं जानता हूँ तू मेरे साथ खड़ा है। सफलता को पाने की कोशिश में तू भी तो मेरी मुश्किलों से लड़ा है। मैं तुझ जैसा ना सही पर तेरी परछाई बनना चाहता हूँ। जैसे तू बिखेरता प्रकाश जग में, मैं भी वैसा कुछ करना चाहता हूँ। हृदय आलोकित कर तेरा, पल पल में तुझे शीश नवाऊं। इस ज्ञान के प्रकाश को जन जन में मैं फैलाऊं। गुरु दक्षिणा स्वीकार कर, मैं हूँ अबोध हे तेज धर, सुन विद्यावान हे विद्यादात, स्वीकार कर मेरा प्रणिपात। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा, इट वाज रियली वंडरफुली रिटन। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप म्यूट पर हैं सर, प्रदीप सर। हाँ ना, बहुत बढ़िया से इन्होंने अपनी कविता रखी। स्वागत। जब तक सर जुड़ते हैं तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि आपके आज्ञा हो तो वाई के शर्मा सर मैं कुछ बात रख लूं तब तक। अरे अरे सर, जरूर हाँ जरूर प्रदीप जी, जी जरूर। जी। श्योर। आज बेसिकली हमारे बीच में जो हमारे प्रोफेसर हरिराम जी जुड़े हुए हैं, काव्य के बारे के संदर्भ में ही वो बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र की जो हमारे पास बड़ी सुदीर्घ और बड़ी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में हमारे पास कुछ संप्रदाय, मुख्य रूप से उन संप्रदायों के जो हमारी नींव है, उस नींव को ध्यान में रख कर के संप्रदायों का जन्म हुआ और उसी का विवरण आगे तक चलता है। सर्वप्रथम हम रस के बारे में जब बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि का हमें ध्यान आता है कि रस के जो संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य भरत मुनि। हर चीज की शुरुआत कहो, नींव कहो, जड़ कहो, यहीं से ही है। ऐसे ही अगला पॉइंट हमारा अलंकार का है। अलंकार के विषय में जब हम बात करते हैं तो आचार्य भामह इसके मुख्य प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके बाद एक रीति संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक हुए हैं वामन, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ध्वनि संप्रदाय हमारे समक्ष आता है, जिसके प्रवर्तक आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, और औचित्य संप्रदाय है जो क्षेमेंद्र जी ने अपने सिद्धांतों से इन बातों को पुख्ता किया है। जब हम रस संप्रदाय की बात करते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार दो विचारधाराएं या दो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। पहली है आत्मा और दूसरा है शरीर, यानी कि जो आत्मा को प्रधान रूप से मानते हैं और दूसरे जो शरीर को मानते हैं। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें भी तीन लोग आते हैं। आत्मा को प्रधान मानने वाले हैं रस, ध्वनि
और औचित्य संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उन्होंने आत्मा को प्रधान रूप से अपना महत्व दिया है। और जो शरीर को जिन्होंने प्रथम स्थान दिया या जिन्होंने महत्व दिया उसमें आते हैं अलंकार, रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय। मुख्य रूप से जब हम यह विचारधारा साहित्य का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि साहित्य का प्राण तत्व क्या है। यानी कि जो हमारा काव्य है, साहित्य आगे चल के जब हम काव्य की दृष्टि से देखते हैं तो काव्य की आत्मा क्या है। इस प्रकार से जब हम परिभाषा का निर्माण करते हैं तो शब्द और अर्थ के सहभाव का नाम ही साहित्य है। किंतु शब्द और अर्थ में प्रधान कौन? तो प्रधान की दृष्टि से शरीरवादी शब्द को प्रधानता देते हैं और अर्थ को प्रधानता देते हैं आत्मावादी। क्योंकि जीवित प्राणी के संपूर्ण चेतना का पर्याय है आत्मा, जिसके न रहने पर संपूर्ण शरीर जो है मृत हो जाता है। इसी दृष्टि को हम आज विस्तार रूप से सर के माध्यम से जानेंगे और संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना तो यह है कि जब हम काव्य की बात करते हैं, काव्य के प्राण तत्व की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं, काव्य क्या है इस पे प्रश्न आते हैं, तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि दुनिया में जितने शब्द हैं, जैसे सर ने अभी छोटे छोटे कुछ बिंदु हमारे सामने रखे, किस तरह से पोएट्री, किस तरह से कविता चंद पंक्ति में ही पूरी हो जाती है, तो वो अपने अंदर बहुत बड़ा अर्थ लिए होती है। तो जितने भी बिंदु हैं उन तमाम बिंदुओं पर कविता हो सकती है, काव्य हो सकती है, काव्य हो सकता है। और छोटे से छोटे ऐसे शब्द, ऐसे जो हमारे साथ घुले मिले हैं, जिनका हम रोज व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं, ऐसे ही एक शब्द के ऊपर या एक चीज के ऊपर मैं एक कविता का थोड़ा सा कुछ रखना चाहूंगा। जैसे एक शब्द हमारे सामने है पायदान। पायदान पे कुछ पंक्तियां मैं बताना चाह रहा हूं। मैं लाया गया घर, मैं लाया गया घर रखने के लिए घर से बाहर, मैं लाया गया घर रखने के लिए घर से बाहर। हाँ, घर मैं में जी बस मैं 1 मिनट कविता पूरी करके सर, अभी 1 सेकंड बस। मैं लाया गया घर रखने के लिए घर से बाहर, घर में मेरा हर किसी से वास्ता था, घर में जाने का एक ही रास्ता। दहलीज पर बिछा हूं इस कदर, सबको भेज अंदर, मैं रहता हूं बाहर। पैरों में बिछा एक किस्सा हूं, कुछ भी कहो मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। सभी के पैर साफ करता हूं एक समान, जी हाँ मैं हूं सिर्फ पायदान। खुश हूं मेरे पास घर है आज, न जाने कितनों का न ठिकाना रहा, न काज न ठिकाना न काज। धन्यवाद। मैं हमारे बीच प्रोफेसर हरिराम जी आ गए हैं, किसी तकनीकी कारण की वजह से जो है सर, निवेदन है आप जो है पुनः शुरू कर सकते हैं जी। धन्यवाद। मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज मेरे घर में और 4 फोन है हमारे, उसमें से कोई नहीं काम कर रहा है ठीक से, तो बट मैं जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। मैं चर्चा शुरू मैंने की थी कि वाक का जो व्यवहार है, माने जिसको हम लैंग्वेज ऑफ पोएट्री कहते हैं, तो वाक का व्यवहार बड़ा अनंत है। और हमारे वेदों में तो ये दर्शन प्राप्त होता है कि वाग इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। विदाउट वाक वी कांट इवन थिंक, वी कांट इवन डू एनीथिंग। यानी वाणी ही ऐसा तत्व है। ये स्पीच, हम उसको स्पीच कह देते हैं, स्पीच तो उसका एक बहुत छोटा पार्ट है, जो हमारे मुख के अवयवों के माध्यम से जो हमारे उच्चारण स्थान है, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, प्लेसेस ऑफ माने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है,
और करण हैं, उनके माध्यम से, स्थान और करण के माध्यम, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके माध्यम से हम ये स्पीच लेवल पे उसको ले आते हैं। बट बिफोर दैट इवन हम परा, पश्यंती, मध्यमा, इन 3 रूपों में उसके स्वरूप को जानते हैं और उसको हम कहते हैं इट इज ऑल परवेसिव। ये पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है, अनंत में है, और वी आर बिहेविंग बिकॉज ऑफ इट। माने अगर वाक तत्व न हो, एक दंडी हुए हैं, उन्होंने कहा इदम अंधन तमः जायेत, इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसारम न दीपयेत। यदि शब्द नाम की ज्योति न हो और इस संसार को वो प्रकाशित न करे तो यह संसार तो अंधकारमय हो जाए, क्योंकि वाक के व्यवहार से ही हम सारा का सारा अपना व्यवहार कर पाते हैं। और वाक ऐसा तत्व, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने 3 प्रकाश माने हैं, त्रय प्रकाशाः स्वरूप पररूपयोर अवद्योतकाः, जो स्वरूप और पररूप इन दो चीजों का प्रकाशन करते हैं। शब्द है जो अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करते हैं। जब शब्द बोला जाता है तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा ये शब्द बोला गया है, घट बोला गया है, पट बोला गया है, देवता बोला गया है। तो देवता, इस शब्द के स्वरूप को भी हम जानते हैं और उस शब्द के अर्थ को भी जानते हैं। मीनिंग ऑफ दैट वर्ड वी अंडरस्टैंड थ्रू दैट कन्वर्सेशन। तो ये स्वरूप और पररूप की प्रकाशकता एक तो अग्नि की होती है, जिसको हम लाइट के फॉर्म में देखते हैं, जिसको हम दीपक के फॉर्म में देखते हैं। दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है और जो इसके प्रकाश में आता है उसको भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से जो चैतन्य है, जो बुद्धि है, वह भी अपने आप को भी, ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है, और जो उसके संपर्क में आने वाले वृक्ष इत्यादि हैं उनको भी प्रकाशित करता है। तो ये 3 प्रकाश ऐसे हैं और इसको हम प्रकाश कहते हैं, और इसके माध्यम से ही संपूर्ण जगत का व्यवहार चलता है। ये हमारी मान्यता है और इसके पीछे तर्क हैं, उन तर्कों के माध्यम से हमने इस बात को प्रतिष्ठित किया हुआ। अब एक प्रश्न आता है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिंग्विस्टिक बिहेवियर तो हमारे दैनंदिन व्यवहार में है। एवरीडे वी प्रैक्टिस इट, वॉट एवर वी वांट टू कन्वे टू अदर्स वी यूज दैट लैंग्वेज व्हाइल कन्वेइंग आवर सेंसेस। जब हम अपनी कोई भी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं तो हम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अर्थगत्यर्थः शब्द प्रयोगः अर्थम संप्रत्याय इष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते। अर्थ का संप्रत्यय मुझे कराना है, दूसरे को मुझे बताना है ये बात, इसलिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और मैं इस समय कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये भाषा का जो व्यवहार है वो तो अनंत व्यवहार है। और इसी में जो टेक्निकल हम उनको शास्त्र कहते हैं, साइंसेस कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो भी इन्हीं भाषाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। देयर इज नो अदर मीन्स टू कन्वे दो शास्त्र, चाहे वो दार्शनिक दर्शन के शास्त्र हों, चाहे वो काव्य के शास्त्र हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जितने भी आपकी ज्ञान की शाखाओं के जो भी शास्त्र हैं उनमें भी भाषा ही प्रयुक्त है। फिर ये लैंग्वेज ऑफ पोएट्री अलग कहाँ से हो गई, क्यों अलग हो गई? तो इस बात को समझने के लिए, क्योंकि सामान्य व्यवहार की जो भाषा है उससे यह भिन्न होती है, इस रूप में हमें इसको पहचानने की आवश्यकता होती है। और यह भी कहा कि गुरुपदेशा दद्धेतुम शास्त्रम जडधियोप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। गुरु के उपदेश से शास्त्र तो आपके समझ में आ सकता है, आप धर्मशास्त्र समझ सकते हैं, आप अर्थशास्त्र समझ सकते हैं, कोई भी आप टीचर के पास बैठ करके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से आप उनको समझ सकते हैं। किंतु काव्य का निर्माण करना, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, काव्य का निर्माण करना, पोएट्री का निर्माण करना, और करना पड़ता है निर्माण, अपने आप नहीं बन जाती है, क्योंकि प्रतिभा भी है आप में, जिस प्रतिभा के कारण ही वह काव्य निर्मित होता है। तो भी आपको वर्णन करना पड़ता है, तो भी आपको उस काव्य की अभिव्यक्ति, काव्य का बाहर ले आना, जो एक क्रिएशन है, वह क्रिएटिव प्रोसेस आप काव्य नहीं आएगा सामने। तो
वह जो सामान्य व्यवहार की भाषा है उससे हो जाती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि उसमें 2-3 कारण हैं। कारण क्या है कि वाजनशीला सहृदय, सहृदय तो होना चाहिए। रीडर जो है जब तक वह कवि के मिश्रा सर, आप अपना वीडियो शेयरिंग बंद कर दीजिए। मिश्रा सर, आज की इस मीटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ है क्या? फिर से कर दिया क्या रीना जी? नेटवर्क का इशू आ रहा है प्रदीप सर, है जी? नेटवर्क का इशू है, फिर एग्जिट हो गए हैं वो। ओहो ओहो ओहो। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि किस तरह से किया जाए। हाँ ना ना, वो तो आज प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं वही कर बात। सकता। हम्म। मीनवाइल एक स्टूडेंट और है, उनको बुला लेते हैं। हाँ हाँ, एक कविता उनकी जो दूसरे थे उनकी भी दूसरे, करा लो। हाँ मैं हम्म। उनसे हेलो कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। हेलो हम्म। Yes, Shishir. प्रेजेंट करूँ मैं? You can Yes, present please. your poem. एक मिनट। हाँ जी, तो ये कहानी है, और ये कहानी बोल मैं रहा हूँ, मगर इस कहानी का मैं कोई और है। तो बड़ी परेशानियों में है ज़माना आजकल, मैंने सुना। परेशान बच्चा बच्चा हो गया, सच्चाई की राह सब छोड़ क्यों रहे, क्यों नकारात्मकता में ये जग सो गया, क्यों लोगों को रौंद भीड़ हिंसा कर रही, इंसानियत का क्यों मोल खो गया, मेरे आदर्शों को सब भूल क्यों रहे, ऐ मेरे ज़माने तू क्या था, तुझे आखिर क्या हो गया। तो कहते हैं जितना ज़रूरी सही को साथ देना है, उतना ही ज़रूरी गलत को गलत बताना है, और लिखने वालों का ये कर्म बनता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करें और समय समय पर ज़माने को आईना दिखाते रहें। तो जिम्मेदारी समझता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त जिस किसी पर लाठियाँ टूटी, जिन पर गोलियाँ चली, जो भी फांसी पर चढ़े, जिस किसी पर लाठियाँ टूटी, जिन पर गोली चली, जो भी फांसी चढ़े, जिस किसी ने रातें अपनी जेलों में बिताई हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं, वो सब के सब मेरे भाई हैं। गलत ही कहानियां नफरतों की जो किसी बेगैरत ने तुम्हें मेरा नाम लेकर सुनाई है, कि देश के लिए लड़े थे हम भी, गोली हमने भी खाई है, फिर क्यों तेरी हर बात का दोषी मैं ही हूँ, तेरी क्यों मुझ संग लड़ाई है। तरह तरह से मुझे दोषी बना दिया, कभी विभाजक, कभी अनैतिक, तो कभी कातिल ठहरा दिया। दर्द मेरा क्या है तुम ये समझ ही तो नहीं पाते, काश ये सब होते हुए तुम अपनी आंखों से देख पाते। तो नजर आते तुम्हें भी वो संघर्ष के दिन जो हमने जेलों में काटे थे, वो शाम की चाय जो खोई हमने। तो नजर आते तुम्हें भी वो संघर्ष के दिन जो हमने जेलों में बिताई हैं, वो शामों की चाय जो खोई हमने, कैसे आज़ादी के सपने खुली आंखों से देखे, वो सब काली रातें जो न सोई हमने। हमने छोड़ा जमाने के ऐशो आराम को, स्वदेशी का नारा बनाया हमने, लड़ते रहे हम, सड़कों पर नारे लगाए हमने, हुकूमत की साजिशों की हर चोट से खुद को और मजबूत बनाया हमने। हम सब कुछ सह गए कभी, तो कभी लोगों को समझाया हमने। एक उज्जवल भविष्य की कल्पना भी की थी, एक उज्जवल भविष्य की कल्पना भी की थी। मैं देख रहा हूँ आजकल जल रहा वो सब जो भी मिलकर बनाया था हमने। कि एक लाठी मेरी थी, कि जब जब कि मैं लाठी ले जब जब चल पड़ता था, एक हुजूम भी मुझको नजर आया।
कि मैं जब जब लाठी ले चल पड़ता था, एक हुजूम ही मुझको नजर आया। पीछे कौन धर्म था क्या मालूम, मुझको हर शख्स हिंदुस्तानी नजर आया। सबके झंडे अलग रंग के, ये बकवास किसकी है, कौन क्या बोलता है, मुझको क्या मालूम। मेरा देश तब भी था और आज भी धर्मनिरपेक्ष नजर आया, विविधता में एकता से सर्वश्रेष्ठ नजर आया। हाँ थे अंग्रेजी हुकूमत के चमचे उन दिनों भी हजार, कितनों ने देशद्रोही पुकारा, मुझको गिनती क्या मालूम। मुझको हर हुकूमती नौकर गिरता पड़ता डरता नजर आया, मेरा देश पिंजरा तोड़ उड़ान भरता नजर आया। कि एक लाठी मेरी थी कि जब जल चल पड़ती थी, हुकूमतें उस वक्त की हिल जाया करती थी। इसका बदरों पर टूटना न जाने शुरू कब बेफजूल हो गया, मेरे आदर्शों को झुटलाना न जाने कब कूल हो गया। ए मेरे देशवासी, किसी की बातों में आ जाता है आएगा। ए मेरे देशवासी, किसी की बातों में आ जाता है तू, तो इतना कब फूल हो गया, तो इतना कब फूल हो गया। कहानी बहुत का मैं बढ़िया। कौन है ये तो आप समझ ही होंगे, मगर नहीं भी तो बस आखिरी पंक्ति में आप समझ जाएंगे। और ये कहानी कह मैं रहा हूँ तो इस कहानी तो जिन शब्दों में जो गुरूर है वो भी मेरा, ये कहानी कहने का नहीं। तो सारी दुनिया मानती है लोहा जिसका, अहिंसा की वो आंधी हूँ मैं। सारी दुनिया मानती है लोहा जिसका, अहिंसा की वो आंधी हूँ मैं। मिटा ना सकोगे इस नाम को कभी तुम, मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, तो मैं जहां से मैंने छोड़ा था मैं फिर शुरू करता हूं। अभी एक फिर कविता आप लोगों के सामने आ गई। ये अच्छा क्रम है, अगर नेट जाए तो इस तरह से आप लोग कंटिन्यू रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि वाल्मीकि ने उस घटना को देखा। वह घटना थी क्रौंच के वध के समय की, जब दो में से एक जो उनका पार्टनर था उसकी हत्या किसी ने कर दी। तो वह हत्या की घटना हम भी देखे होते और भी लोग देखे होते, तो वह कविता हमारे अंतर्गत प्रस्फुरित शायद नहीं हुई होती, जो कविता उस वाल्मीकि के हृदय में प्रस्फुरित हुई, जिन्होंने एक अमर काव्य लिख दिया। और अमर काव्य लिखते समय उन्होंने संपूर्ण अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी भारत की जो मिट्टी की गंध है, जो वेदों की सुगंध है और जो वेदों के रहस्य हैं, उन रहस्यों को लेकर के एक ऐसे काव्य का निर्माण कर डाला जो युग प्रवर्तक काव्य कहा जा सकता है, जिसमें सबके समावेश का स्थान है। तो इस प्रकार की कविता आने के पीछे प्रतिभा कारण होती है, उसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। और ये केवल भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा या भारत की जो चिंतन परंपरा है, केवल उसके ये बिंदु नहीं है। कविता कहीं भी लिखी जाएगी तो आपको टैलेंट की आवश्यकता, टैलेंट हर काम में आवश्यक होता है। मैंने अभी कहा था कि टैलेंट मतलब आप गुरु शिष्य परंपरा से सब शास्त्र पढ़ेंगे तो टैलेंट वहां पर भी जरूरत है, किंतु काव्य के लिए जिन उपादानों की आवश्यकता है वह प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा है। वह नवीन का उन्मेष करने वाली है। घटना वही सामान्य हो सकती है, उसको किसी ने भी उस घटना को देखा है तो वह उस घटना से जो इंस्पायर हो करके कुछ एक नूतन लिख डालेगा, कुछ समाज को दे डालने के भाव से लिख डालेगा, वह कविता होगी। और उसके कई उपादान है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी 4 लाइन जोड़ दिया, हमने तुकबंदी कर दी तो कविता बन जाएगी। कविता की जो शर्तें हैं वो सामान्य जीवन का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को लेते हुए उसमें सबका समावेश आपको करना है। उसमें चाइना के आक्रमण का भी समावेश करना है, जो हमारे निरपराध माने जो नृशंस हत्यारे हो सकते हैं और जिन्होंने अपनी सीमा का रक्षा करते हुए बलिदान दिया है, अपने भारतीय धर्म, भारतीय भूमि को की रक्षा करते हुए, यही उनका धर्म था, इस धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है। जिन्होंने जो कश्मीर से विस्थापित हुए, जिस भी घटना को आपको ये लगे कि नहीं ये समाज के हित के लिए है और इससे पूरे समाज का संदर्भ हम ले रहे हैं, कोई हमसे नहीं छूट रहा है, वह गरीब हो, वह अमीर हो, वह बेईमान है तो उसको भी हमें उजागर करना है कविता के माध्यम से, ईमानदार है तो उसको कविता के माध्यम से हमें उजागर करना है। और इन सत्यों को आप साक्षात भी कह सकते हैं, किंतु कविता के माध्यम से संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। उसमें जो छंद का निर्माण हम करते हैं,
यद्यपि गद्य पद्य उभयात्मक हम काव्य को मानते हैं, गद्य के माध्यम से भी आप बहुत अच्छी बातें कह सकते हैं, पद्य के माध्यम से आप अच्छी बातें कह सकते हैं, तो जो छंद निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें हम अक्षरों का ध्यान रखना, उसकी जो मेलोडी है उसका ध्यान रखना, जो रिदम है उसका ध्यान रखना, जो स्ट्रेस है उसका ध्यान रखना, अंग्रेजी कविताओं में हमारे यहाँ जो पद हैं, जो चरण है, उनके माध्यम से उन कविताओं को, तो एक भाषा का जो संगठनात्मक स्वरूप है छंद के माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण जो है, जो काव्य को काव्य बनाता है, वो उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी है, वह उसका अंतः सौंदर्य है, जो उस काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। क्योंकि जो कथ्य है वह कथ्य तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने जो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री की बात की है, उस लैंग्वेज ऑफ पोएट्री का लक्षण अगर हम करेंगे तो वह शब्द, जैसे हमने कहा कि हमने जो ब्रह्मा की सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिसमें पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, ये सारी की सारी जो सृष्टि है, और इस सृष्टि की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से भी विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से काव्य की सृष्टि होती है। वो कहते हैं अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम जगत ग्राव प्रख्यम निज रस भरात सारेति च क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसर सुभगम भासेति तत् सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदयाख्यम विजयते। कहते हैं कि अपूर्वम वस्तु प्रत्यति बिना कारण कलाम, कवि जो है वह एक अपूर्व सृष्टि का निर्माण करता है, बिना कारण के सृष्टि का निर्माण करता है। मैं एक प्राकृत कविता से आपको इसके उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक कवि है, उसके सामने नायिका वो आग फूंक रही है। अब तो गैस चूल्हा हो गया है, आग फूंकने की जरूरत नहीं है, किंतु जब ईंधन गीला हो, गांव की महिलाओं से आप पूछिए, जब ईंधन गीला हो और वह जलाए न जले, तो उस समय कोई महिला आग फूंक रही है, बार बार फूंक रही है कि ये जल जाए, और वो जलाए नहीं जल रहा है, खाली धुआं हो रहा है, क्योंकि थोड़ी आग है, गीला है ईंधन, तो आग होगी। तो कहते हैं रंधन कम्रणीय माजूरसु रक्त पाडल सुगंधम वह मारुवम पियन धूमाई सिहीण पर जले। यह अग्नि जल नहीं रहा है, जलाए नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि यह तुम्हारी मुख की वायु को पीना चाह रहा है। अरे अग्नि क्या वायु पिएगा? और कैसा वायु? रक्तिम जो पाटल कुसुम है, पुष्प है, उसकी सुगंध वाले वायु को, तुम्हारे मुख के वायु को पीना चाह रहा है। तो ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन में ये वो, यद्यपि वो कवि का यथार्थ है, कवि की चेतना उसको इस रूप में देख रही है, किंतु उसका वास्तविक जगत से कोई मतलब नहीं है, और इस वास्तविक जगत से विशिष्ट बनाना ये कवि का कार्य है। उन्होंने कहा नियतिकृत नियम रहता, जो एक कार्य कारण संबंध होता है संसार के सभी कामों में, उस कारण से भी परे है हमारी यह कवि की सृष्टि। आह्लादमयी माने केवल आह्लाद ही इसमें है। जैसे जो भारत माने जो सृष्टि है हमारी, जिसमें हम पृथ्वी में रहते हैं, उसमें कट भी है, लवण भी है, तिक्त भी है, कषाय भी है, कोई आपको खराब बात बोल जाता है, कोई किसी का अपमान, ये सारी घटनाएं होती हैं, ये कभी कभी हमें दुखी करती हैं। किंतु जो काव्य की सृष्टि है उसमें केवल आह्लाद मिलता है। अगर कोई कविता कर रहा है तो उस कविता को सुना रहा है तो उसके माध्यम से हमें आह्लाद प्राप्त होता है। और चाहे वो करुण रस की कविता हो, चाहे वह श्रृंगार रस की कविता हो, चाहे वह रौद्र रस की हो, विभत्स रस की हो, जितने 9 रस गिनाए गए हैं, शांत हो, करुण, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, अद्भुत, संज्ञो, चेतस्तु, नाट्य, रसास्मृता, शांतो विनोमो रस। काव्य में शांत रस को भी हम रस मानते हैं। तो ये सारे के सारे रस आस्वाद रूप हैं, आह्लाद कारक हैं। इस रूप में हम इस काव्य सृष्टि को देखते हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि वह जो अभिव्यक्ति है, जिसको हम अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, वह कैसे अभिव्यक्त हो जाती है? तो कह रहे हैं उसके लिए हमें प्रतिभा की आवश्यकता होती है। प्रतिभा क्या है? कहते हैं प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता। हर व्यक्ति उसी घटना को देखेगा, किंतु जिसमें नवीन का उन्मेष कर ले जाने का सामर्थ्य होगा, वही उस प्रज्ञा के माध्यम से, उस प्रतिभा के माध्यम से, नव नव का उन्मेष करने वाली जो प्रज्ञा है, वह जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के माध्यम से वह
नूतन का आधान करेगा। और क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, उसमें नूतनता आएगी, क्षण क्षण नूतनता आएगी। कालिदास के काव्य को पढ़िए, शेक्सपियर के काव्य को पढ़िए, ओथेलो को पढ़िए, बार बार आपको पढ़ने पर नए नए अर्थों का ज्ञान होगा, नए नए प्रकार की भावनाएं आपकी उद्बुद्ध होंगी। तो यही काव्य का सर्वोत्तम गुण है, काव्य की भाषा का यही सर्वोत्तम गुण है कि बाकी जितने भी शास्त्र हैं, बाकी जितना वाणी का व्यवहार है, वह सिंपलेस्ट होता है, अर्थात इंडिकेटिव होता है कि हमने भाषा का उच्चारण किया, उस भाषा के माध्यम से एक प्रकार का अर्थ हमें ज्ञात हो गया। हम किसी ने हमसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ, हम एक गिलास पानी ले आकर के दे दिए, उस वाक्य का अर्थ समाप्त हो गया। किंतु जो काव्य की भाषा है, उस ये शास्त्रों में भी यही चीज होती है। प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी विचित्र विधा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? प्रसिद्ध जो कथन के प्रकार हैं, जो संसार में हमने देखे हुए हैं, निरंतर हमारे लिंग्विस्टिक बिहेवियर में जो दृष्टि के विषय बने हुए हैं, ऐसे व्यवहार से ऊपर उठ करके, माने वह व्यवहार तो रहेगा, हम उसी शब्द का आश्रय लेते हैं जिसका हम लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं, हम उन्हीं अर्थों का भी आश्रय ले सकते हैं। किंतु इसके साथ साथ हमारे सामने ऐसे शब्द और अर्थ आने चाहिए जिसमें प्रसिद्ध विधान प्रकार के कथन से भिन्न प्रकार का कथन का प्रकार हो, उसको हम वक्रोक्ति कहते हैं। किंतु उसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। वो अनिवार्य शर्तें क्या हैं? वो अनिवार्य शर्त है सहृदय हृदयाह्लादकता। जो सहृदय हैं, जो काव्य को समझ सकते हैं या जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें समझने की प्रतिभा जागृत हो रही है, उनके हृदय को अगर कविता से आह्लाद मिल रहा है तो आप समझिए कि वह कविता सार्थक है। और आह्लाद इसलिए मिल रहा है कि उसमें दोनों चीजें होती हैं, उसका कथ्य इंपॉर्टेंट होता है और उसकी भाषा इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि केवल भाषा में आडंबर डाल करके, उसमें छंदो विधान के माध्यम से, उसमें विभिन्न प्रकार के ओजो व्यंजक शब्दों का प्रयोग करके, जैसे मैं अगर एक कविता पढ़ूं तो हम पढ़ सकते हैं स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ गुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्ष हर्ष विहित स्नाना निकाहना यवः भिद्यादुद्यतुदार दर्दुरधरी दीर्घा दरिद्र द्रुमद्रोहो द्रेक महोर्मिमेदुर मदा मंदाकिनी मंदताम। ये वर्णन है, मंदाकिनी का वर्णन है। इस प्रकार से शब्दों का वैचित्र है इसमें, किंतु कविता यही नहीं रुक जाती, इस वैचित्र को भी वह प्रश्रय देती है। किंतु इसके साथ साथ एक सरल शब्दों में ऐसे अर्थ को प्रस्तुत करना जो अर्थ सामान्य रूप से प्रस्तुत नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। जैसे हम ऐसे अर्थ को प्रस्तुत करें जो शब्दों के उच्चारण के माध्यम से थोड़ा थोड़ा तो व्यक्त हो रहा है, किंतु जब तक हम लक्षणावृत्ति को नहीं जानते हैं, एक्सटेंडेड मीनिंग को नहीं जानते हैं, जब तक हम सजेस्टिव मीनिंग को नहीं जानते हैं, तब तक उसके कथ्य को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये सजेस्टिव मीनिंग तक जाना, और सजेस्टिव मीनिंग हो चाहे अभिधेयार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ हो, उसका जहाँ प्रोमिनेंस हो जाएगा उसके आधार पर उस काव्य की परीक्षा होगी, वह कविता के रूप में उपस्थित होगी। इसमें जो काव्यत्व का जो मुख्य तत्व हमारी परंपरा ने माना है वो सामान्य कथन तो है। हम किसी भी बात को सामान्य रूप से कह सकते हैं। वार्ता उसको हम कहते हैं, अस्तंगतोर कहा गतोस्तमर कहा भाति इंदु यान्ति वासाय पक्षिणा, पक्षी निवास के लिए जा रहे हैं, इंदु चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, सूर्यास्त हो गया। इस प्रकार से ये कथ्य हो सकते हैं, किंतु जब तक अतिशयोक्ति न हो, जब तक पर्यायोक्ति न हो, जब तक अन्योक्ति न हो, माने व्यंग्य के माध्यम से हम जिसको समझाना चाह रहे हैं, व्यंग्य के सीधा कहने पे उतना असर नहीं होता है जितना व्यंजना वृत्ति के माध्यम से, सजेस्टिव मीनिंग के माध्यम से, जो शब्द के माध्यम से कहा गया जो अर्थ है, उससे शब्द से कहा गया अर्थ तो सामने आएगा,
क्योंकि जब जब आप शब्द का प्रयोग करेंगे तब तक उससे रिलेटेड मीनिंग आपके सामने आएगी। उसको हम लोग अभिधेयार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। वह होना ही है, शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंध होता है, और उसको हम कभी लोकक व्यवहार से, कभी व्याकरण के माध्यम से, कभी कोश के माध्यम से उसको उस अर्थ को जानते हैं। किंतु उस अर्थ से भिन्न एक जो सहृदय के हृदय को आनंद देने वाला अर्थ है, वह अर्थ भी उपस्थित होता है। कैसे होता है मैं उसको आपको बता रहा हूं। जैसे हम जो है विभावों का वर्णन करते हैं, हम अगर सेंटिमेंट को बताना चाहते हैं, रस को बताना चाहते हैं, हम रस क्या है, स्थायी भाव और रसास्मृता। स्थायी भाव की अगर अभिव्यक्ति हो जाए, अगर स्थायी भाव हमारी प्रतीति का विषय बन जाए, तो समझिए कि हमने काव्य में चमत्कार प्राप्त कर लिया, काव्य में आनंद प्राप्त कर लिया। क्योंकि वह जो आनंद है, जो रसानुभूतिकृत चमत्कार है, उसको हम चमत्कार कहते हैं, उसको हम आनंद कहते हैं। उसमें विगलित वेद्यांतरता है, अर्थात जितना भी अन्य वेद्य है उन सब की अपेक्षा वह सब विगलित हो जाता है। अर्थात केवल और केवल जो उसके विभाव हैं, जो अनुभाव हैं, जो संचारी भाव है और जो व्यभिचारी भाव है, माने संचारी कहिए या व्यभिचारी कहिए, और जो सात्विक भाव है, उन भावों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ जो स्थायी है वही चरवणा का विषय बनता है। अगर श्रृंगार है तो रति आपका स्थायी हो जाएगा, अगर करुण है तो शोक स्थायी हो जाएगा, अगर हास्य है तो हास्य स्थायी हो जाएगा। तो उन 8 रसों के लिए या 9 रसों के लिए 9 प्रकार के स्थायी हमारे आचार्यों ने गिनाए हैं, और वो प्रायः लोग जानते हैं उनको। किंतु मुख्य बात यह है कि उस रस की अभिव्यक्ति कराने के लिए हमें विभावों का, अनुभावों का, सात्विक भावों का और संचारी भावों का हमें वहां पर उपनिबंधन करना होता है। वह भाषा के माध्यम से उपनिबंधन होता है। जैसे मान लिया हम विभाव उसको कहते हैं, विभावैर अनुभावैश्च सात्विकैर व्यभिचारी भी आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावा रसः स्मृतः। तो भाव क्या है? भाव है फीलिंग, जिसको हम कहते हैं is complete pervasion of the heart by any emotion, whether it is pleasure, whether it is pain। प्रेम का माने दुख का अथवा आनंद का जो भी हृदय की व्याप्ति है, हृदय में जो उसके इमोशंस की व्याप्ति है, अगर ऐसा हो रहा है, चित्त की व्याप्ति है, तो वो भाव है। और सुख दुख इत्यादि रूप जो भाव हैं, ये आचार्यों ने कहा भी है, सुख दुखादिकेर भावेर भावस्तद्भाव भावनम। माने आपके हृदय की जो व्याप्ति है वह सुख दुख के जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उनसे वह व्याप्त हो जाए, तो यह भाव है। किंतु विभाव क्या करता है? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। इन विभावों का कार्य होता है जो इसको हम मैंने आपका जो स्थायी है, हम उस स्थायी की ओर बढ़ रहे होते हैं, या उस स्थायी की उत्पत्ति होने लगती है। माने वह प्रतीति का विषय बनने लगता है कि अच्छा, जैसे विभाव क्या होगा? आलम्बन विभाव। मान लो रति की बात करनी है तो सीता या राम उसके विभाव बन जाएंगे। आज भी आप जो ड्रामेटिक एक्सपीरियंस देखते हैं, ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं, किसी भी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए अगर वह श्रृंगार की कहानी है या करुण की कहानी है, वेदना है, या कोई हास्य की कहानी है, तो उसमें हम किसी न किसी को विभाव बनाते हैं। विभाव माने आलम्बन विभाव बनाते हैं। और आलम्बन विभाव का मतलब वो नायक हीरो भी हो सकता है और हीरोइन भी हो सकती है। तो कोई न कोई उसका आश्रय होना चाहिए, रति का आश्रय होना चाहिए, विषय के रूप में आश्रय होना चाहिए, विषय के रूप में आश्रय होना चाहिए। इस प्रकार से सीता विषय रति है और राम उसके लिए विषयी है। तो ये भी एक प्रकार से हम विभावों के माध्यम से उसको समझते हैं, उसको हम आलम्बन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव वो होते हैं जो उस घटना को एग्जेजरेट करते हैं। जैसे चाइना हमारे खिलाफ बहुत कार्य कर रहा था,
अभी जब हाफिज सईद की बात आई थी, टेररिस्ट माने जो टेररिस्ट है जिसको भारत आतंकवादी, पूरा विश्व आतंकवादी घोषित कराना चाह रहा था, और जिसका बॉम्बे जैसे अटैक में हाथ है, जो केवल धर्म के आधार पर कि हम हिंदुओं को जीने नहीं देंगे, इन आधारों पर जो आतंकवाद का एक चला रखा है उन्होंने, केवल धर्म उनका आधार है, माने जिहाद के नाम पर, और अज्ञान में है, वो समझ भी नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे उस टेररिस्ट को जब भारत ने कोशिश करके पूरे विश्व से उसको आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की, तो चाइना ने तात्कालिक रूप से वहां पर हस्तक्षेप किया। तो अभी जो उस समय से आक्रोश चाइना के खिलाफ हमारे मन में चल रहा है, और अभी जो उसने हमारे सैनिकों की नृशंस हत्या कराई है, वो तात्कालिक, वो हमारे लिए उद्दीपन भी भाव है। हम अगर अब यहाँ पर वीर रस की कविता करते हैं, वीर रस का आचरण तो वहां होगा, वहां सैनिक उनको मारेंगे, किंतु जब कोई कविता लिखेगा, जब उस घटना का कोई वर्णन करेगा और उसके मन में उस घटना के माध्यम से वह करुणा का भाव आएगा, वीरता का भाव आएगा, वह कौन सा भाव आएगा उसको लेकर के अगर कोई कविता लिखता है, तो वह एक प्रकार से उसमें उद्दीपन विभाव का काम करेगा। अगर श्रृंगार रस में कहीं आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, कहानियों में, सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबने पढ़ा होगा, वहां पर जब श्रृंगार दिखाया जाता है तो वन को या वन में पुष्प को, सुगंध को, इन सारी चीजों को उद्दीपन विभाव के रूप में दिखाया जाता है। एक मैं उदाहरण आपको पाली लिटरेचर से देता हूं। मैं चूंकि संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत मैंने खूब पढ़ रखा है, वर्तमान साहित्य भी हिंदी का हो, रामचरितमानस खूब पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहिए उसको, आप लोग भी पढ़िए, आपकी काव्य की प्रतिभा बढ़ जाएगी अगर आप वेद जानते हो, अगर आप सारे वेदों को जानते हो। और जब हनुमान राम से बात कर रहे हैं तो राम ने कहा कि अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है मुझसे बात कर रहा है जो ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा ना सामवेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम, जो ऋग्वेद को नहीं जान रहा हो, जो सामवेद को नहीं जान रहा हो, जो यजुर्वेद को नहीं जान रहा हो, वह इतनी प्रबुद्ध बातें नहीं कर सकता है। उसके लिए कंटेंट मिल जाता है हमारे इन स्क्रिप्टर्स से, रामायण से, महाभारत से, गीता से, वाल्मीकि रामायण से, ये रामचरितमानस से, इतना कंटेंट आपको मिलेगा, अद्भुत कंटेंट मिलेगा। क्योंकि जब आप कविता करने चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने कथ्य होना चाहिए, और वह कथ्य तथ्यात्मक हो। उसके साथ साथ उसके अगर उसको हमें हिस्टोरिक, चाहे आप बौद्ध लिटरेचर ही पढ़ें, आप किसी भी माध्यम से उस ज्ञान से अपने आप को जोड़ें। और हमारे देश के ज्ञान की ये विशेषता है कि उसमें कंटिन्यूटी है, उसमें सातत्य है, अविच्छेद है, उसमें सर्व समावेशिता है, उसमें ऐकात्म्य है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में भारत की को बड़े स्पृहा के साथ आज देखा जा रहा है, बड़े आशा के साथ देखा जा रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत से अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। यहाँ कहते हैं कि जो बौद्ध ज्ञान है वो संस्कृत ज्ञान से अलग है। मैं कहता हूँ इन सब में एक आत्मता है। हमने जो सिद्धांत स्थिर किया है दर्शनों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, वो सिद्धांत है आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम अपने आप को आप जैसा मान करके, आपको अपना जैसा मान करके हम व्यवहार करें इस संसार में, ये हमारा सिद्धांत है। हम ये कहते हैं जो आत्मा मुझ में है वही चेतना आप में है। तो जो इंडिविजुअल चेतना है उसको यूनिवर्सलाइज करने का न जाने कितना सिद्धांत भरा पड़ा है, उसको पढ़ने की जरूरत है। बिना उसको पढ़े जो बकवास करते हैं उसमें जा करके आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको गंभीरता से अध्ययन, कालिदास ने अपने काव्य में कहा है कि जब मेघ को वो भेजने लगे, आप देखो कल्पना उनकी कि अपनी पत्नी के पास उसको संदेश भेजना है तो मेघ का उपयोग कर लो। क्यों? क्योंकि मेघ तो आता जाता है और मेघ के जब आने पर इसका श्रृंगार का भाव और उद्दीप्त, वियोग और उद्दीप्त होता है, तो उसको हम अपने संदेश वाहक के रूप में यूज कर लें। अब वहां पर वो कहते हैं कि जब तुम जा रहे हो तो मार्ग में नर्मदा नदी का पानी खूब पी लेना, और उससे क्या होगा,
उससे आप गुरु हो जाओगे। गुरु माने गौरव आ जाएगा, आप भारी हो जाओगे, तो हवा जिधर चाहेगा उधर नहीं उड़ा पाएगा। आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हो उस दिशा में आप जा सकते हो। तो ये जो रिक्ता सर्वो ही भवति लघु पूर्णता गौरवाय, तो उस रिक्तता को मिटाने के लिए आपको जो भी कविता करना चाह रहा है उसको अध्ययन करना चाहिए, गंभीर अध्ययन करना चाहिए, तो उससे कंटेंट मिलता है। और जो मैं विभागों की बात कर रहा था उस प्रकार के, जैसे मैंने पाली लिटरेचर की बात की थी, तो वो कहते हैं एक जैसे कोई लड़की है, कोई भिक्षुणी रही, अब उस भिक्षुणी के पीछे कोई भिक्षु पड़ा हुआ है और वो कहता है ए ही रमान सुपुष्पिते बने, ये सुपुष्पित वन है, आओ यहाँ पर हम विचरण करें, घूमें, आनंद लें। तो मोरों की ध्वनि है, माने जितना भी, जैसे मैं जेएनयू में अभी रह रहा हूँ, जिस समय पानी बरसने का समय आता है तो बहुत प्लीजेंट मौसम, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, आनंद आता है। तो वो कहता है, भिक्षुणी को कोशिश कर रहा है, मैंने एक तरह से वो परसू कर रहा है कि ए ही रमाम सुपुष्पिते बने, आओ हम इस वन में रमण करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन इसके लिए तुम्हें वन प्रेरित कर रहा है, तुम्हारे लिए श्रृंगार के लिए उद्दीपन हो सकता है, मेरे लिए तो ये शांति के लिए उद्दीपन है। मेरा मन बुद्ध में लग गया है, मैं बुद्ध की भावना कर रही हूँ, मैं ज्ञान की भावना कर रही हूँ, तो इस समय मेरे लिए उससे अच्छा और कुछ नहीं है, मैं उस भावना में प्रवृत्त हूँ। तो वही उद्दीपन आपको श्रृंगार के लिए प्रेरित कर सकता है, वही उद्दीपन आपको ध्यान के लिए प्रेरित कर सकता है, वही चंद्रमा की रोशनी चोर के लिए जो है वो कारक बन सकती है, वही वियोगी के लिए दुख का, माने जो वियोग के अनुभव को दीप्त करने वाली हो सकती है। और कोई साधक है, वही उसी चांदनी में वो साधना कर सकता है, ध्यान रमा सकता है। तो ये जो उद्दीपन विभाव है, इनका भी बड़ा महत्व है, विभाव है। इनका हम शब्द से वर्णन करते हैं, इनका हम अभिधा के माध्यम से वर्णन करते हैं, इनका हम लक्षणा के माध्यम से वर्णन करते हैं। लक्षणा से हमें एक्सटेंडेड मीनिंग मिलती है, जो अभिधा में कोई दुविधा उपस्थित हो। जैसे हमने कह दिया क्रॉसिंग पर घर है, तो हमारा घर क्रॉसिंग पर तो नहीं है, हमारा घर तो क्रॉसिंग के बगल में है, चौराहे के बगल में है, फिर भी हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो चौराहे के किनारे मेरा घर है, या गंगा में घोष है तो गंगा के किनारे मेरा घर है, इस प्रकार से एक्सटेंडेड मीनिंग हम लाते हैं। किंतु फिर हम कहते हैं कि अनुभाव आते हैं, विभाव, अनुभाव। तो अनुभाव का कार्य क्या है? अनुभाव जो आश्रय है उसका, रस का, उसमें कटाक्ष उजाक्षेप आदि होने लगते हैं। जैसे मान लो युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके अंग फड़कने लगेंगे, जो मारने वाला है उसके अंग फड़के के, जो माने वहां पर रस की प्रतीति होने लग जाती है। ऐसे वर्णन किए जाएंगे जिनमें स्पष्ट रूप से वह शरीर में दिखाई पड़ने लग जाए, तो हम उनको अनुभाव कहते हैं। और ये विभाव जब होंगे तभी अनुभाव आएंगे। पहले पूर्व शर्त विभावों की है, फिर अनुभाव है। और फिर जो संचारी भाव है, जिनमें श्रम है, स्वेद है, बेपथु है, कंपन, शरीर में कंपन होने लग जाए, इस प्रकार के जो संचारी भाव है, या जिनको हम विचारी भाव कहते हैं, उनकी प्रतीति कराना, उनका वर्णन करना। और जो सात्विक भाव हैं, सात्विक भाव भी 8 हैं, ये 49 हैं। 8 सात्विक भाव, 8 स्थायी भाव, और 33 हमने गिनाए हैं, शास्त्रकारों ने गिनाए हैं, जो संचारी भाव जिनको कहते हैं। तो स्तंभ, प्रलय, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, बेपथु, अश्रु, ऐश्वर्य, ये जो वैश्वर्य माने आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ निकल कुछ जा रहा है। श्रृंगार में आपने देखा होगा कि लड़की को जब लड़का प्रपोज कर रहा है, डर भी रहा है कि पता नहीं मार न पड़ जाए, तो उस समय उसमें उसका वैश्वर्य होता है, वो बात अपनी ठीक से नहीं कह पा रहा होता है, तो उसका भी हमें वर्णन करना होता है। जो हमारी चेष्टाएं हैं, सारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, मानसिक चेष्टाएं हैं, रुक जाना, स्तंभ देख लिया हम, रुक गए, रोमांच हो जाना, पसीना पसीना हो जाना। हम कहते हैं कि चोरी किसी की पकड़ी गई, वो फक पड़ गया, फक पड़ गया, तो ये जो फक पड़ जाना है, यह भी वैवर्ण के अंतर्गत आता है। आंसू टपक पड़ना और स्वर का विकृत हो जाना, ये सारे जो सात्विक भाव हैं। और जो मैंने अभी बताया कि जो व्यभिचारी हैं, संचारी भाव हैं,
उन सारे भावों का जब कविता में वर्णन होता है, जब काव्य में वो प्रस्तुत किए जाते हैं, तो चाहे आप नाटक देखते समय कर लीजिए, वो दृश्य काव्य हो जाता है, और शब्द काव्य जो महाकाव्य इत्यादि होते हैं वो शब्द काव्य हो जाते हैं जब मुख से सुनाए जाते हैं। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि जब अभिनय होता है तो अभिनय, जितना भी अभिनय आप कर रहे हो, उस अभिनय के पीछे भी वाचिक चलता रहता है। माने संकेत के माध्यम से जो चीजें आपको बताई जा रही होती हैं उनको आप शब्द के माध्यम से ही समझ रहे होते हैं, तो शब्द की व्यापकता इस तरह से दिखाई देती है। और आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय, इन अभिनयों के माध्यम से जब हम स्थाई की अभिव्यक्ति करते हैं, स्थाई क्या है? स्थाई हमारे अंतर्गत का भाव है, वह कहीं बाहर नहीं है। जो कवि है उसके कवेर अंतर्गतम भावम भावेन भाव उच्यते। कवि का जो अंतर्गत भाव है, कवि की जो चेतना है, कवि में जो रति है, नायक में जो रति है, वही रति हम में भी है। और उस रति का जब हम प्रकटीकरण करेंगे, जब हम उसका आस्वाद करेंगे, तो उस समय विगलित वेद्यांतरता आएगी, उस समय कुछ भी हमें प्रतीति तद। इसमें एक चीज और है, एक ब्रह्मास्वाद की हम बात करते हैं, जब काव्यास्वाद की बात करते हैं, काव्य का जो आनंद है, उस आनंद की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मास्वाद की भी हम किससे क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? तो कहते हैं कि ब्रह्मास्वाद जो है निर्विषयक होता है, आत्मानुभूति होती है, किंतु रसास्वाद तब तक जब तक आप पिक्चर हॉल में बैठे रहते हैं, आप भूले होते हैं कि कौन नायक है, कहाँ घर है हमारा, कहाँ हम बैठे हुए हैं। कोई आप नाटक पढ़ रहे होते हैं, आप सब कुछ भूले होते हैं। तो ये जो भूलना है, किंतु वहां पर जो कथ्य चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, जो विभाव है, जो अनुभव है, जो संचारी है, वो हमारे सामने ज्ञान के विषय बने रहते हैं। तो इस माध्यम से जब हम कविता का प्रकाशन करते हैं, इस रूप में जो श्रृंगार की अभिव्यक्ति कराते हैं, रति की अभिव्यक्ति कराते हैं, और वह अभिव्यक्ति होती है। हमारे शास्त्रकारों ने यह भी बताया कि अगर कोई आपसे कहे कि आप जो श्रृंगार है, आपको मैं कह रहा हूं श्रृंगार रस का अनुभव करिए, तो क्या आप श्रृंगार रस का अनुभव करने लगेंगे? तो कहते हैं नहीं, यह जो भाव और श्रृंगार का जो रसों का जो प्रकरण है, वह नितांत व्यंजना के माध्यम से ही मिल सकता है, अर्थात व्यंग्य ही हो सकता है। जब भी भावादि प्रकट किए जाते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब प्रकट किए जाते हैं, और अगर छंद अलंकार उसमें साथ में है, उसमें तो उसमें उत्कर्ष आ जाता है। गुण क्या है? गुण जो है वह वर्णों का समुचित सन्निवेश। जैसे आपको श्रृंगार रस का वर्णन करना है, तो वहां पर आपका जो साउंड पैटर्न होगा, जो वर्ण होंगे, वो थोड़ा कठोर होने, माने श्रृंगार है तो मधुर होने चाहिए। अगर वीर का भी व्यंजन करना है, वीर रस को प्रकट करना है, जैसे वो कहते हैं कि दोषणाम चैषाम किमेतत् नगरी रक्षणे यत् प्रयासा। तो जो कठोर वर्ण है, जब वीर रस का प्रकट करना है, तो वीर रस के काल में आपको कठोर वर्णों का प्रयोग करना है। जब श्रृंगार का प्रयोग, जैसे कालिदास है वो श्रृंगार के कवि हैं, तो वहां पर सरल वर्णों, ये सारी कविताओं में है। जिस प्रकार के भाव को, जिस प्रकार के रस को आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, उस प्रकार के वर्णों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसमें गुणवत्ता अधिक आएगी। नहीं तो फिर रस विघ्न होते हैं, उन विघ्नों में वो चला जाएगा, उसकी प्रतीति ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग किया, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो आपको रस की प्रतीति में बात आएगी। आदमी कहेगा कि ये क्या लिख रहा है, इसको तो लिखना भी नहीं आ रहा है, भाषा का भी ज्ञान नहीं है। तो भाषा शुद्ध हो और भावों की ठीक से अभिव्यक्ति हम करा सकें, इस रूप में उसमें अलंकारों की भी आवश्यकता होती है। उपमा अलंकार है, सिमली बहुत पुराने समय से हमने उसको देखा हुआ है। तो उपमानों के माध्यम से जो लोक में सिद्ध उपमान है, माने हम क्या करते हैं, हम जो है बहुत सी चीजों को जब बताना चाह रहे होते हैं, दैट यू डोंट नो दोज थिंग्स, आई वांट टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, सो व्हाट वी डू, वी टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम बिहेवियर। तो वह जो हम उसको सिमिली बोलते हैं, उपमान बोलते हैं, उसके माध्यम से जब हम बात को अधिक कहना चाहते हैं, अधिक बताना चाहते हैं, तो हम उस बात को वहां पर लाते हैं। जैसे हमने कहा, उतत्तः पश्यन् न ददर्श वाचम
उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो तस्मै तन्मं विसस्ये जायेव पत्युस्ति श्वास। जैसे पति अपने स्वरूप को प्रकट करती है, पत्नी प्रकट करती है अपने पति के सामने, वैसे ही ये भाषा जो है, ये वाक जो है, वह अपने संपूर्ण स्वरूप को साधक के सामने प्रकट करती है जो उचित साधना करता है। तो कवि के लिए एक बहुत बड़ा जो कारण है वह यत्नतः प्रत्यभिज्ञेय उतौ शब्दार्थो महाकवे, उसके शब्द का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। माने ऐसे शब्द का चयन जो जिस अर्थ को वो कन्वे करना चाह रहा है उस अर्थ को कन्वे करने में वो शब्द समर्थ हो। तो ऐसा अर्थ जो प्रतीयमान अर्थ है, जो सरस्वती का सर्वस्व है, सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंद माना महताम कवि नाम अलोक सामान्य, और वह लोक से माने एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि रस को और इस काव्य एक्सपीरियंस को वो लोक से बाह्य मानते हैं, अलौकिक कहते हैं, शब्द उनका है अलौकिक। किंतु इसको ऐसा मत मानिए कि इस संसार में नहीं है, कहीं हेवनली है या कहीं दूसरे कोटि में है। अलौकिक कहने का केवल इतना मतलब है कि जो सामान्य व्यवहार में कार्य कारण भाव चलता है, ज्ञाप ज्ञापक भाव चलता है, निमित्त निमित्ती भाव चलता है, उससे ये भिन्न है। और यहाँ पर न कारण है, क्यों? क्योंकि कार्य और कारण में एक नियम है, कार्य नष्ट बना रहेगा अगर कारण नष्ट भी हो जाए तो भी। यहाँ क्या है, विभाव नष्ट हुए आपका स्थायी गया, तो यहाँ कार्य कारण भाव भी नहीं चलता है, ज्ञाप ज्ञापक भाव भी नहीं चलता है। इस प्रकार से उन्होंने इसकी अलौकिकता बताई है। उस अलौकिकता का केवल और केवल इतना मतलब है कि जो एक्सपीरियंस आप डेली बिहेवियर में करते, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया चाइना की घटना, या कोई भी आपका मित्र है कहीं पिट रहा है तो उससे आपको कष्ट होगा, किंतु रावण पिट रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति पिट रहा है तो उससे हमें कष्ट नहीं होगा। हम उस घटना में जो काव्य की घटना है उस घटना में हमें केवल आनंद आएगा, अगर वह करुण रस भी है तो भी। मैंने यहाँ पर कालिदास का नाम लिया, ये तो रस की बात हो गई, अलंकार की बात हो गई, गुण की बात हो गई, छंद की बात हो गई, जिसके कारण काव्य की भाषा में उत्कर्ष आता है। इस पर हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे कवियों ने उसका व्यवहार में प्रयोग किया है, और फिर काव्य शास्त्रकारों ने उसको आधार बना करके बहुत डिस्कशन किया है, जिसमें रस के स्वरूप के लिए आपको पूरा अभिनव भारती में जो भरत का रस सूत्र है, विभावानुभाव के विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस पूरे संयोगाद शब्द की व्याख्या में पूरा का पूरा चैप्टर है, छठा चैप्टर है। तो हमने तो बहुत विस्तार से एस्थेटिक्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस के बारे में, हमारा तो पूरा तंत्र है। और मैं आपको और बता दूं, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए जान करके कि जो यूरोपियन लिंग्विस्ट हैं, 19th सेंचुरी यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स, वो कहते हैं कि विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लिंग्विस्टिक्स our 19th century European linguistics was just impossible. We borrow all technical terms from Sanskrit linguistics. तो हमने तो विश्व को पूरा दिया है, और कश्मीर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आप एस्थेटिक्स की बात करेंगे तो इंडियन एस्थेटिक्स की बात करेंगे, भरत का नाम आएगा, अभिनव गुप्त का नाम आएगा, मम्मट का नाम आएगा, कल्लट का नाम आएगा, जय्यट का नाम आएगा, उद्भट, रुद्रट, न जाने कितने इतने बड़े आचार्य हैं जो वहाँ फ्लोरिश किए, जो कश्मीर से फिलॉसफी हमने बहुत खोया है। हमने, हमारे पहले के आचार्य और मुनि और शासकों ने तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काव्य लिखे हैं, और उन्होंने कहा कि चाणक्य का जो प्रतिज्ञा वो है, चाणक्य प्रतिज्ञा, उसमें वो पहुंचते हैं नंद के पास और कहते हैं कि मैं इस समय तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं क्योंकि तुम चेत नहीं रहे हो और पूरी सीमाएं हमारी असुरक्षित हो रही हैं। तो वहां पर उस शासक के प्रति आक्रोश व्यक्त करने हमारे आचार्य, हमारे कवि पहुंचते हैं, और वो लिखते हैं कि ये तो उसमें लगा हुआ है, मतलब उचित कार्य नहीं कर रहा है। तो पोएट्री के माध्यम से हमने चेतना भी दी है, संपूर्ण विश्व को चेतना दी है। आनो भद्रा कृतवो जंतु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदा, इस रूप में जो वैदिक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानताम, ये हमारे मंत्र हैं, ये हमारा काव्य है।
कालिदास का मैं नाम ले रहा था, वो लिखते हैं आपन नार्ति प्रशमन फला संपदो युक्तमाना। उत्तम व्यक्ति की संपत्ति का फल क्या है? आपन्न व्यक्ति की पीड़ा का नाश हो जाए। जैसे आज अभी जो श्रमिक वर्ग था वो परेशानी में था, तो क्या हम बाहर निकल करके उनकी समस्याओं का समाधान हमने किया? अगर हमने नहीं किया तो हम अपने आप को उत्तम नहीं कह सकते। इस रूप में हमारे कवियों ने शाकुंतलम के माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से, और न जाने कितने काव्यों, मुद्रा राक्षस, आप पढ़िए मुद्रा राक्षस, आप अथर्ववेद का भूमि सूत्र पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए, पूरे विश्व को चेतना देने के लिए उन्होंने कार्य किया था, उन काव्यों के माध्यम से किया था। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा नाटक है जो लोग कहते हैं कि कालिदास तो श्रृंगार के कवि हैं। मैं भी मानता हूं कालिदास श्रृंगार के कवि हैं। और कालिदास लिखते हैं अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुई। ये तो ऐसा फूल है जिसको अभी नाखूनों ने तोड़ा नहीं है। ये शकुंतला के लिए कालिदास लिखते हैं। तो लोगों का आक्षेप है कि भाई ऐसा कैसे आप कह रहे हो, मतलब भारतीय संस्कृति में तो ये ठीक नहीं है एक लड़की को देख करके इस तरह का भाव व्यक्त करना। उसका समाधान हम ये कह के करते हैं कि नहीं, शाकुंतलम में जब एक युवा एक युवती को देखेगा तो उसके मन में इस तरह के भाव आते हैं और उसी के कारण दोनों में अनुराग उत्पन्न होता है। किंतु उन्होंने ये ध्यान रखा कि आदौ वाच्य स्त्रियो राग पश्चात पुंसस्तदिंगितैः। पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होगा कब? जब पहले स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट हो। माने आदौ वाच्य स्त्रियो राग, स्त्रियः राग अर्थात स्त्री का जो राग है, अनुराग है, आसक्ति है, वह पहले कही जाए, वह पहले बताई जाए। पश्चात पुंसस्तदिंगितैः, फिर उनके हाव भाव से, उनके जो व्यवहार है उनके माध्यम से पुरुष की उसके प्रति आसक्ति हो। भगवान शंकर और पार्वती का प्रसंग लिया है उन्होंने, वो अर्धनारीश्वर है। हमने महिलाओं का कितना सम्मान किया। हमारे देश में अर्धनारीश्वर का कहीं नहीं है, पूरे विश्व में किसी भी लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा। इन कवियों ने शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में वर्णन करके समान महत्व दिया है। उत्तर रामचरित में अद्वैतम सुख दुख हो, सुख और दुख का अद्वैत हो। और इस प्रकार से इन्होंने पूरा जो एक तंत्र बनाया वह कंटेंट की दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण है। शाकुंतलम की मैं बात कर रहा था, पहले 3 अंकों में उनके प्रणय का व्यापार है, दोनों में आपस में सहमति है, दोनों आपस में प्रणय व्यापार करते हैं। आगे उनको कर्णों का जो एक धर्म है कि अगर इन्होंने बालिग हैं और इन्होंने आपस में प्रणय व्यापार किया तो उसको अनुमति दे करके शकुंतला को पति के घर भेजने का कार्य करते हैं। और दुष्यंत अब अपने स्वभाव के कारण, राजा का स्वभाव है या उस दुर्वासा के कर्ष के कारण, जो भी उसकी व्याख्या करना चाहे, किंतु वो संयोग से उसको स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि नहीं, आई डोंट नो यू हूसोएवर यू आर। अगर मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरा धर्मच्युत होता है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ आप कौन हो, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, जैसे भी है। तो अब इस अवसर को अगर आप देखिए, 6ठे अंक को आप पढ़िए ठीक से, पंचम और 6ठे अंक को, तो वहां, क्योंकि वहां तक कोई जाता नहीं है, आपको कभी ये बातें बताई नहीं गई हैं। नाटक या काव्य को किस दृष्टि से पढ़ना है, केवल एक प्राथमिक जो वो बनाते हैं, व्यू हम बनाते हैं, वो किसी अंश को लेकर के व्यू बना लेते हैं। इसीलिए कालिदास ने कहा कि रिक्ता सर्वो ही भवति लघु पूर्णता गौरवाय। आप पूर्णता में जाइए, पूर्ण ग्रंथ को आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिटन देयर। तो कहते हैं जब शकुंतला का प्रत्याख्यान करता है दुष्यंत, मना करता है कि नहीं, आई डोंट नो यू हूसोएवर यू आर, तो शकुंतला का स्त्रीत्व जग उठता है। और उस समय उसके जो साथ में गए थे, कर्ण की पुत्री थी, कर्ण ने उसका पालन पोषण किया था, वह आश्रम में रही थी, तो उसको जो एक चेतना जागृत होती है उस चक्रवर्ती राजा के खिलाफ, वो आपको सुन करके रोमांच हो जाएंगे। कहती है कि धर्म कंचुक प्रवेशिना, इस समय तुम धर्म का चोंगा ओढ़ रहे हो। चोंगा हम लोग बोलते हैं ना कि धर्म की आड़ ले रहे हो। धर्म कंचुक प्रवेशिना मुख मधो हृदय स्थित विषस्य,
तुम्हारे मुख में मधु है था उस समय, जब मीठी मीठी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अंके निधाय चरणावुत पद्मताम्रौ संवाहयामि करवोरु यथा सुखम थे। तुम्हारे चरणों को अपने अंक में रख करके मैं उसको माने सेवा तुम्हारी मैं करूंगा। मैं इस तरह के मीठे मीठे बात बोल रहे थे। तो उस समय तो तुम्हारे मुख में मधु था, किंतु हृदय स्थित विष से, उसी समय तुम्हारे हृदय में विष स्थित था। तुम तो ऐसे कुएं के समान हो, तृणच्छन्न कूपोपमस्य, जिस कुएं का मुख भाग, ऊपर का भाग जो है ढक दिया गया है। क्यों ढका जाता है? उड़ीसा वगैरह में प्रैक्टिस है, अगर हाथी को पकड़ना है तो एक गड्ढा खोदेंगे और उसको दौड़ाएंगे और उस गड्ढे का मुख ढका रहेगा, गहरा गड्ढा होगा, वो दौड़ करके उस घास के उसमें फंस जाएगा, मतलब उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो कहा कि तुम तो ऐसे कुएं हो जो तृणच्छन्न कूपोपमस्य, तिनके से ढके हुए उस कुएं के समान हो, जो धोखा देने के लिए बनाया गया, ऐसे तुम व्यक्ति हो। ये चक्रवर्ती सम्राट के खिलाफ शकुंतला बोलती है। कितने हमारे जो वामपंथी भाई रोमिला थापर ही क्यों ना हो, उन्होंने कितनों ने उस पर लेखनी चलाई है। तृणच्छन्न कूपोपमस्य मुख मधो हृदय स्थित विषस्य धर्म कंचुक प्रवेशिनः का इदानीं तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते। कौन मुझ जैसी लड़की जो जो तुम्हारे पीछे क्यों जाएगी अगर तुम में ये दुर्गुण है? तो ये चक्रवर्ती सम्राट को उसके सामने ललकारना, ये कवि वो कही थी कि नहीं कही थी अलग प्रश्न है, किंतु कवि की चेतना ये कहला रही है उसके मुख से। तो ये एक बहुत बड़ी चेतना, यही कवि की चेतना होनी चाहिए कि अगर आप कविता करने जा रहे हैं तो आप सत्य को कहने का साहस पैदा करिए अपने पात्रों में, और उसके माध्यम से पूरे समाज में वो चेतना जाए। इसलिए वो करता है, क्योंकि कवि की काव्य केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, क्लासरूम टीचिंग केवल कुछ लोगों की नहीं होती है, इन आचार्यों के डिस्कोर्सेस कुछ लोगों के लिए नहीं होते हैं। वो जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल होते हैं या उपदेश में शामिल होते हैं, उन लोगों के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड में जाती है, पूरे मासेस में जाती है। मास में जाए हमारी चेतना, इसके लिए गांधी जी भी परेशान थे, इसके लिए विवेकानंद भी परेशान थे, इसके लिए अंबेडकर भी परेशान थे, इसके लिए जो ये है अरविंदो वो परेशान थे, जितने लोग हैं, क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके माध्यम से ये सारा ज्ञान लोगों के बीच में जाए, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा काम है। और हम केवल क्लासरूम टीचिंग तक न रह जाए, हम केवल इन डिस्कोर्सेस को केवल ये वर्चुअल माध्यम तक न रह जाए, हमारे इन छात्रों में ऐसी चेतना जाए कि उनके माध्यम से ये सारा, और उनको जागरूक करना ये आचार्यों का दायित्व है। कि मैं अभी इस बीच में इसका ये जो फेसबुक वगैरह इसको देखने लगा, इसमें कितने वल्गर चीजें आती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? आज कविताओं के माध्यम से उन पर आक्षेप होना चाहिए, हमें खुलकर उन पर आक्षेप करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। वल्गैरिटी को प्रमोट करना ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ मैथुन नहीं था, ये मैं नहीं कहता हूँ, संभोग नहीं था, ये मैं नहीं कहता हूँ, सब कुछ था। किंतु उसको जब पार्वती शिव की तरफ देख रही हैं, पार्वती तपस्या कर रही हैं, तो उस समय शिव का जो एक्सप्रेशन है, भगवान शंकर का उस एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। उन्होंने सॉरी, मैं जब कहिए मैं कंक्लूड कर दूंगा। हाँ 5 कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो कहते हैं उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। जब वो दृढ़ हो गई कि नहीं मैं आपसे ही चाहे, पार्वती ने तपस्या की, पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, शिव नहीं गए उनके पीछे। ये हम अपने काव्यों के माध्यम से ये चेतना देते हैं। आज अगर हम इस बात को मान लें तो बलात्कार की कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी इस विश्व में। तो हमने तो डेलिबरेटली हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी उसको पढ़ना बंद करा दिया इस देश में। हम उन गुलामों के मतलब जो कॉलोनाइज्ड माइंड है, उस कॉलोनाइज्ड माइंड के कारण ब्रिटिशर्स का जो यहाँ सबसे बड़ा खराब रोल रहा है, आज भी उसके दिए हुए जो इंटेलेक्चुअल्स, आप देख लीजिए
मैं आश्चर्य करता हूं कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में हमें जाना है, बात करनी है, तो इंग्लिश इज द कनेक्टिव लैंग्वेज। व्हाई? आप दक्षिण भारत की एक भाषा को बना लो ना, आप उत्तर भारत वाले को सिखाओ दक्षिण की, दक्षिण वाले को सिखाओ उत्तर की। भारतीय भाषाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, संस्कृत के लिए कहते हैं कि वो तो एलीट लोगों की लैंग्वेज थी। आप ईमानदारी से बताओ, अंग्रेजी भाषा किस मास को आती है? आज जो कंप्यूटर के ज्ञान से मासेस वंचित हैं, जो दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप अंग्रेजी के माध्यम से क्या बताओगे? उस समय तो संस्कृत कम से कम मासेस में थी। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां नाटकों को आप देखिए, पाली है माने प्राकृत है तो संस्कृत भी है, संस्कृत और प्राकृत दोनों का साइमल्टेनियस प्रयोग हो रहा है, और उसके माध्यम से वो लोग को भी ले रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत माने जो डिस्कोर्स ऐसा है कि जिस भाषा में भी हो, ऐसा कौन है? मान लिया कह रहे हैं कि कुछ पात्र ऐसे हैं जो प्राकृत बोलते हैं, बिना संस्कृत समझे वो बोल रहा है। संस्कृत भाषा उसमें किसी पात्र की है, ठीक है, दूसरा पात्र प्राकृत बोल रहा है। जब तक प्राकृत वाला संस्कृत नहीं समझेगा, संस्कृत वाला प्राकृत नहीं समझेगा, संवाद कैसे होगा? नाटक तो संवाद का है और उसको आदर है। आप काव्य शास्त्र पढ़ डालिए, अभिनव गुप्त का पढ़िए, धन्यालोक पढ़िए, काव्य प्रकाश पढ़िए, सारे के सारे उदाहरण प्राकृत के दिए गए हैं। रंधन कम्मणि उड़िए माजूर सुरक्त पाटल सुगंधकम मुह मारुवम पियन धूमाई से। हमने भेद नहीं किया है, हम भेद को नकारते हैं। हम कहते हैं भाषाओं में एकात्मता है। अगर आपको दक्षिण की आंध्रा की भाषा समझनी है, तेलुगु समझनी है, मलयालम समझना है, आपको कन्नड़ समझना है, आप पाली प्राकृत संस्कृत के माध्यम से समझ सकते हैं, आप उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं। आपको उड़िया समझनी है, आप इन प्राकृतों के माध्यम से। हम तो हिंदी भाषा को भी पढ़ाने के लिए हमने इन माध्यमों को खत्म कर दिया। हमने तुलसीदास को पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों भाई? कौन सा गलत उन्होंने लिखा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, इसका भी को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कमी है इसमें? हम शेक्सपियर को पढ़ करके, एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उनका नाम था सन दुबे, और वो रागलैंड हॉस्पिटल के चीफ थे। तो व्हाट ही वाज डूइंग, मतलब मेरा उनसे संवाद हुआ, तो उनको जब पता लगा कि मैं संस्कृत का हूँ, तो उन्होंने बड़ा खुशी से कहा कि यू आर राइट पर्सन हियर, आई वांट टू लर्न अभिज्ञान शाकुंतलम सिंस वन फेलो फ्रॉम अदर कंट्री, मैंने अमेरिका से किसी मेरे मित्र ने कहा है कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहिए। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अगर मैं कहता तो तुम नहीं पढ़ते। मैंने ये भारत की दशा हमने बना रखी है। नाउ ऑल ऑफ अस आर ग्रोइंग, और ये हमारे मन में होना चाहिए कि जो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने हमेशा कहा है कि आनो भद्राकृत वाहयन्तु, हमने कहा है, वेदों में कहा है कि जो विश्व का ज्ञान है वो हमारे पास आए अगर हमें विकसित कर सकता है तो। किंतु जो हमारा ज्ञान है जो हमें विकसित करता रहा है, जब पूरे वर्ल्ड में हम सबसे विकसित माने जा रहे थे, जब हम इकोनॉमी में सबसे विकसित थे, जब हमने भाई किसी को हमने भूख नहीं मरने दिया। गांव की संस्कृति में अगर आप पले बढ़े होंगे, मैं तो अपने घर में देखा हूँ, कोई निकम्मा भी है, काम भी नहीं कर रहा है, फिर भी अगर वो मांगने आ गया कि माता जी आज भोजन के लिए नहीं मेरे पास, डांट के उसको कि नहीं तुम निकम्मे हो, तुम काम नहीं करते हो, इसीलिए तुम परेशान हो, फिर भी उसको भोजन दिया जाता था, बना करके दिया जाता था। कई बार जो भी हमारे घर में है वो सब मिल करके खाएंगे। ये हमारी संस्कृति है। हमारे मंगलाचरणों में कहते हैं कि नहीं, वाई दिस स्पिरिचुअलिटी, क्या जरूरत है इसकी? अरे स्पिरिचुअल होने क्या जरूरत है? तुम मानते क्या है स्पिरिचुअल होके? हम कहते हैं कि दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बल हानिकरम परम। दुर्वृत्त जो है, इवन इफ आई एम दुर्वृत्त, माने अगर हमारे आचरण, इफ आई एम क्रिमिनल, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो मेरे बल की हानि हो जाए, मैं परेशान हो जाऊं, मेरा नुकसान हो जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बल हानिकरम परम। तो यह प्रार्थना तो अच्छी है ना। ऐसी स्पिरिचुअलिटी कम से कम हम उसके माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं और अपने आत्म विकास करते हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं? आज जो साइंस आपके समाज में दिखाई पड़ रही, डॉक्टर लूट में लग गए, कहा कि कोविड से परेशान हो, अच्छा आओ 5 लाख रुपया। ये कौन सा साइंस है? व्हाट काइंड ऑफ साइंस वी आर डीलिंग विद? इसी को उन्होंने ठीक करने के लिए कोशिश किया था कि नहीं, मन को ठीक रखो। और उन्होंने कहा था न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य जो है वह धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त मात्र ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम संतुष्ट हो करके, क्योंकि लोभ है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन्हीं को तो दूर करने की कोशिश की उन्होंने काव्यों के माध्यम से, अपनी अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। और एक चीज और मैं लास्ट में कह करके समाप्त करूंगा, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि उन्होंने लिख तो दिया था, इट वॉज नॉट इन प्रैक्टिस। प्लीज गो एंड सी द लिटरेचर। चाणक्य वाज प्राइम मिनिस्टर नहीं, किंग मेकर ऑफ दैट किंगडम। चंद्रगुप्त को उसने राजा बनाया था। ऐसा चाणक्य, जब मुद्रा राक्षस में उसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं क्या है, उपल शकल मेतद भेदकम गोमयानाम बटुभिरुपहृतानाम हरीशाम स्तूपमेतत् शरणमपि समिद्धि शुच्यमाणाभिराभिर विनमित पटलांतम दृश्यते जीर्ण कुटी। उसकी जीर्ण कुटी दिखाई पड़ रही है, पत्थर का टुकड़ा कंडी तोड़ने के लिए रखा गया है, कुछ इत्यादि रखे गए हैं, और छत उसकी झुकी हुई है। इस प्रकार हो राजाधिराज मंत्रिणो विभूति। ये राजाधिराज का जो मंत्री है, इतने बड़े साम्राज्य का जो मालिक था वो, उसी ने चंद्रगुप्त को बनाया था। और चंद्रगुप्त वाज ओबेइंग हिम। तो कौमुदी महोत्सव का ऑर्डर कर दिया कि अब तो राज्य मिल गया, कौमुदी महोत्सव मनाओ। चाणक्य ने कहा नहीं, कौमुदी महोत्सव नहीं बनेगा। वो मान गया। तो जो उसको उकसाने वाले थे कहे अरे राजा की इच्छा तो सबसे बड़ी होती है। किंतु उस समय आचार्य का महत्व था, क्योंकि वह राष्ट्र के हित का चिंतन कर रहा था। ऐसे लिटरेचर को पढ़ करके हम कौन सी कमी करने जा रहे थे? हम 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक बेस्ट इकोनॉमी थे, पूरे वर्ल्ड में थे। और ठीक है, कभी कभी विसंगतियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हमसे चूक हुई, हमसे सुरक्षा की चूक हुई, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे सुरक्षा की चूक हुई। नहीं तो आज कश्मीर इतना बड़ा ग्रेट कल्चरल सेंटर था, शारदा का देश था। शारदा देश माने जो इस पूरे कवित्व की अधिष्ठात्री देवी है, उनका वह देश माना जाता था। तो इस प्रकार से इस पूरी परंपरा को समझ करके और फिर अगर हम काव्य का निर्माण करें, उसको टुकड़ों में न करें, हम पूरी घटना को सामने ला करके और फिर एक समाज को ऐसा अवसर दें जिसमें न विखंडन की प्रवृत्ति हो, न विभाजन की प्रवृत्ति हो, सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति हो। और जहां तक हो सके हम अपने व्यवहार से लोगों को, जो हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे हैं, उनको सिद्धांत के साथ साथ अपने व्यवहार के माध्यम से अगर हम सिखा ले जाएं, then our discourse will be useful. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके वक्तव्य ने निश्चित रूप से अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया है। सर, हमारे श्रोतागण विद्यार्थियों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनका समाधान आपसे अपेक्षित है। सर, पहला प्रश्न अदिति जैन की तरफ से है। उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ग्रामर दैट कैन बी यूज्ड इन हिंदी पोएट्री? See, whenever you are speaking, you should speak it correctly. क्यों उन्होंने कहा एका शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुः? There are two reasons. One is when you are pronouncing it incorrectly, it can be understood otherwise. What meaning you want to convey, that meaning will be only conveyed by a correct word. Otherwise, like in Sanskrit, if I say example from Sanskrit, उसमें जो वो है वर्ड्स हैं, जैसे सकृत एंड शकृत, तो एक का अर्थ होता है खंड, एक का अर्थ होता है एक बार। If you use those type of words, so you must pronounce those words correctly. अभी क्या किया है कि हम जो भी लिख देंगे वो कविता हो जाएगी, ये एक चल पड़ा है। बट आप किसी भी भाषा का जो स्वरूप है, आप ठीक है
वो कविता उनके लिए ठीक है। जैसे हमने कभी इसको मना नहीं किया था। मैंने अभी अभी आपको उदाहरण में बताया है कि संस्कृत, अगर आप नाटक लिख रहे हो संस्कृत का अभिज्ञान शाकुंतलम, तो जो भाषा है जिसको दूसरे भी समझ रहे हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, उससे भी मीनिंग कन्वे होगी। हमने अपभ्रंश उसको कहा हुआ है और अपभ्रंश से मीनिंग कन्वे होती है, बट उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी भ्रामक स्थितियां आ जाती है जिनके कारण वो मीनिंग पूरी कन्वे नहीं हो पाती है। तो जो पर्पस ऑफ यूजेस ऑफ वर्ड्स इज बीइंग डिफीटेड, सो ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका म्यूट है, इट इज म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, अगला प्रश्न सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम किरण एंड ध्रुव बत्रा. क्वेश्चन इज, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल ऑन भाव एंड रस यूज्ड इन द वर्क ऑफ कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम? या दैट आई टोल्ड, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत आश्रम में पहुंचता है, दुष्यंत गोes to आश्रमा, कर्णवाज आश्रम, he was on the way and the situation of that ashram was very good and मैंने बताया था अभी कि उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, तो जो वहां पर दुष्यंत ने उस शकुंतला को देखा तो उसके मन में भाव उत्पन्न हुए। These are the bhavas. He was pleased to see her. तो ये जो कवि ने उस घटना को पोएटिक ब्यूटी के साथ प्रस्तुत किया है, उससे किसी भी जो whosoever is reading that poetry or watching that drama, he will be enjoying the sentiments. होता क्या है कि एट द टाइम व्हेन ही इज एनुमरेटिंग ऑल दीज थिंग्स, शकुंतला वहां पर है, यंग है और वो इस तरह से वहां पर उपस्थित हो रही, उसके चलने के हाव भाव से दुष्यंत समझ जाता है कि ही इज इंक्लाइंड टू मी। तो ये जो परस्पर अनुराग का जो वहां पर प्रेजेंटेशन है, उसको हम भाव की कोटि में रखते हैं। उससे हम, होता क्या है ना, जैसे if we are readers or we are spectators of those dramas, so what happens, वो the incident is between Shakuntala and Dushyant, but it also it is generalized while it is told in a drama. अगर वो नाटक में कह दिया गया है तो वह जनरलाइज हो जाता है, और जो हमारी संवेदना है, my consciousness, that is even attached to it. अब उस समय न वो शकुंतला रह गई, न वो दुष्यंत रह गया, साधारण एक घटना हो रही है और मैं भी उस घटना में शामिल हूँ। इस प्रकार की जो सामान्यकरण इसको हम कहते हैं, इसको साधारणीकरण, जनरलाइजेशन कहते हैं। दैट विभाव इज जनरलाइज, दैट अनुभव इज जनरलाइज, दैट all experiences at that time are generalized, all feelings are generalized. So I am experiencing rasa, which is expressed in me only. Rasa is not out of me. The feeling which was in me, rati जिसको हम कहते हैं, उसी का हम अनुभव कर रहे होते हैं, उसी की चर्वणा कर रहे होते हैं। It is only experienced by us. So that way दुष्यंत और शकुंतला के बीच का जो ये श्रृंगार का पार्ट है, बट इन लास्ट इट बिकम्स विप्रलम्ब श्रृंगार। वो दोनों का परस्पर वो होता है, पार्थक्य होता है। फिर बाद में फिर आश्रम कल्चर है, तो वहां वो जा करके ऋषि के आश्रम में माफी मांगता है दुष्यंत, तो उसके माध्यम से फिर रीयूनियन होता है। तो इस रूप में हम उसका श्रृंगार रस का वहां स्वरूप देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जी। सर, अगला प्रश्न दीपक की तरफ से है। क्वेश्चन इज देयर अ रिलेशन बिटवीन भाव एंड रस ऑफ हिंदी एंड संस्कृत पोएम्स? It is not, you don't think that it is these bhavas or rasas are told for any particular language.
those feelings you are expressing, those feelings can be expressed in any language, whether it is Hindi, whether it is English, whether it is any language. Like if you are seeing tragedies from Greek literature, then the करुण रस is there. हम उसको ट्रेजेडी को करुण रस कहते हैं अपने यहाँ. उसमें अगर हीरो लास्ट में मिल जाता नहीं मिलता है तो या वो मारा जाता है तो उसको करुण रस को हम कहते हैं, वो करुण रस है. तो the feelings which are described by the poet in any language, whatever, like तुलसीदास जी को आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, अब रावण को जब वो मार रहे हैं, कुंभकर्ण को मार रहे हैं, that time वीर रस वहां पर हम समझ रहे हैं कि वीर रस हो रहा है. तो वो किसी भी आप भाषा के माध्यम से you can understand and you can express also, since languages are same. All languages are expressing the feelings. All languages are expressing the meanings, whichever you want to convey. So that way, any. Sir, next question है अश्विन की तरफ से. Question is, what are your views about change in the structure of poetry from Bhakti Kal to the modern time? See, माने ये लोक का धर्म है कि हम बहुत तरह से चेंजेस करते हैं. तो भक्ति काल का थोड़ा सा जो समय था वो निश्चलता का था, मतलब सरेंडर, ज्यादा सरेंडर करेंगे, सरेंडर का ज्यादा स्वभाव दिखाई पड़ता है. सरेंडर किसके प्रति? जो हमसे गुणों में अच्छा है, माने क्वालिटीज. वो इट वाज, भक्ति इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज. हम जो भक्ति करते हैं वो क्वालिटी को भक्ति करते हैं. अगर वही रावण है, वो हमें कुछ भी दे दे, हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्वालिटीज नहीं है. तो वी वांट टू इनहेरिट दोज क्वालिटीज. बट आज का जो मॉडर्न पोएट्री है उसमें हम तात्कालिक कुछ किसी छोटे घटना को लेकर के, खासकर हम अपने इर्द गिर्द की जो घटना है जो हमें प्रभावित कर रही है, हमारा जो चिंतन है वो थोड़ा सीमित हुआ है. आई कैन से दैट इन मॉडर्न पोएट्री हम उन संवेदनाओं से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं जो सबके साथ उस पोएट्री का कनेक्शन हो. तो अभी हमने क्या शुरू किया हुआ है कि डिविजिव पॉलिटिक्स, इसको मैं कह सकता हूँ. कारण क्या है? जैसे आप जैसे ही कहते हो कि ये सिद्धांत तो संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए नहीं है. आई डोंट बाय दोज आर्गुमेंट्स. रीजन इज दिस, वो फीलिंग्स ही तो है. आप उसमें हर रस ढूंढ सकते हो, हर तरह का कंटेंट ढूंढ सकते हो. तो ये ढूंढने की वाली बात है. तो जो जैसे अभी मैंने देखा जेएनयू में आकर के दलित साहित्य. अब दलित साहित्य का स्वरूप क्या बनाया? दलित द्वारा लिखा गया साहित्य है या दलित के लिए लिखा गया साहित्य है. वाई वी कॉल इट दलित साहित्य. आप साहित्य बनाओ और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, इनकन्वीनियंसेस हैं, उनको समाधान करने लिए एक घटना का वर्णन करके कोई हम उससे कुछ हासिल नहीं करने जा रहे हैं. तो वी मस्ट मेक इट अ केस दैट इट मस्ट बी यूनिवर्सलाइज्ड. ये जो चेतना होती थी, व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना बनाना, ये कार्य आज होना चाहिए. और अगर भाषा में और अच्छाई हो सकती है तो अच्छा है. वो ज्ञान किसी न किसी माध्यम से हर व्यक्ति के पास तक पहुंचता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके से आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा. अब मैं आई वुड नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर डिम्पल गुप्ता जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम पीजीडीएवी कॉलेज, टू डिलीवर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. धन्यवाद रेखा जी. और सर, निश्चित रूप से आज जो आपने अपना सारगर्भित वक्तव्य दिया, इतना मैं तो मतलब हैरान हो रही थी कि इतने सारे तत्वों को आपने समाहित किया. तो सर, धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये हमारा जो वर्कशॉप चल रही है, ये स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और जिया के और उड़ान के सहयोग से हमारा ये कार्यशाला संपन्न हो रही है. और इसमें आज का जो ये सत्र है सर, लेखन से संबंधित आपके कुशल निर्देशन में बहुत सफलता से ये संपन्न हुआ. इसी कड़ी में मैं सबसे पहले जो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी
मैं डॉक्टर YK शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने कई सर आपने हमारे मेंटोर भी हैं वो, उन्होंने कई चीजें बताई किस प्रकार कविता हमें विशिष्ट बनाती है, क्योंकि कविता और भाषा का संबंध उन्होंने बताया कि भाषा जो है वो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। भाषा के द्वारा हम किसी भी प्रकार के भावों को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा सर, आप बिल्कुल समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता है और आप गाइड करते रहते हैं हमारे छात्र छात्राओं को। सर दूसरी कड़ी में प्रदीप जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने आज बहुत सुंदर पायदान कविता हमारे समक्ष रखी और बहुत ही मार्मिक कविता थी। किस प्रकार से और वर्तमान परिस्थिति के साथ उन्होंने जोड़कर इस कविता को हमारे सामने रखा। और एकेडमिक अफेयर्स कमेटी के वो संयोजक भी हैं, जिनके सहयोग से ये हमारा जो कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं इसके सत्र। और इसी कड़ी में सर मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रोफेसर साहब का। ये देखिए कि किस तरीके से सर आपने जो शुरू में ही आपने जो प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी, आपने किस प्रकार से इतने सारे काव्य के तत्व समाहित कर दिए यहाँ पर। आपने इतने सारी भाषाओं का ज्ञान, शुरू में ही आपने वाग तत्व की महत्ता की बात की, वाग तत्व की अनिवार्यता की बात की। इसके बाद आपने शब्द नाम की ज्योति के महत्व को बताया कि वाकई में ही काव्य में शब्दों का महत्व माना गया है। कहा भी गया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्द का महत्व नितांत रूप से स्वीकार्य है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सर आपने 3-4 जिन बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई, उनको मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी। आपने बताया कि भाषा या कविता का जन्म किस प्रकार से, वियोग के द्वारा किस प्रकार से काव्य उपजा, और वहां पर आपने क्रोंचवध की घटना का वर्णन किया। और ये सही बात है कि वियोग से ही कविता का जन्म हुआ है। इसके साथ साथ काव्य का अनिवार्य तत्व प्रतिभा के द्वारा किस प्रकार से एक सफल काव्य का सृजन किया जा सकता है, उसको आपने हमारे सामने रखा। और ये मेरा मानना है कि अगर हमारे विद्यार्थी सफलतापूर्वक इन तत्वों का अवलोकन करेंगे, अनुकरण करेंगे, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काव्य वो रचेंगे सर भविष्य में। आपने इतने काव्य में आपने छंद का महत्व बताया कि छंद वाक्य काव्य की आत्मा है। छंद के द्वारा ही काव्य में संगीत तत्व, जो एक अनिवार्य तत्व काव्य के लिए माना गया है। और छंद के साथ साथ आपने बताया कि किस तरीके से काव्य से आह्लाद उत्पन्न होता है, एक अनिवार्य तत्व है ये भी काव्य का। और अनेक उदाहरण देकर कालिदास के, शेक्सपियर के, रामचरितमानस के, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम के उदाहरण देकर आपने काव्य की जीवंतता को हमारे सामने रखा सर। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की बात आपने की। तीनों ही तत्व हमारे विद्यार्थी जो भी काव्य शास्त्र से जुड़े हैं वो इन तत्वों को पढ़ते हैं और काव्य के लिए अनिवार्य तत्व माने गए हैं। इसके साथ साथ सर रसों का स्वरूप, आपने बहुत विस्तार से रसों के स्वरूप पर अपनी बात रखी। आपने सभी रसों के जो तत्व हैं, अंग हैं, उनके बारे में आपने बताया। और मैं ये मानती हूँ कि इतने कम समय में एक तरह से गागर में सागर भर दिया है सर आपने, क्योंकि इतना ज्ञान तो हम कितने लेक्चर जब करते थे कॉलेज में तब हम इतने सारे तत्वों को समाहित कर पाते थे, लेकिन आज इतने समय में मुझे तो लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2-3 चीजें और आपने बताई सर। एकात्मकता, आपने साहित्य के संदर्भ में एकात्मकता की बात की, बहुत नितांत एक प्रासंगिक तत्व है। इसके साथ साथ छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, गुण हैं, सभी पर आपने बताया। अलंकारों की महत्ता को आपने बताया। एक आपका जो महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगी कि ये सही है कि
कविता संपूर्ण विश्व को वाणी देती है, चेतना जागृत करने का माध्यम है। और आज जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां चल रही हैं, उस समय में कोविड-19 के इस त्रासद समय में बिल्कुल सर काव्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमें प्राचीन परिपाटी को छोड़कर बिल्कुल नए जो संदर्भ हैं, नए जो प्रसंग हैं, नई जो त्रासद समस्याएं हैं, उन पर हमें लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर आपने बताया कि किस प्रकार से एक कवि ही सच को कहने का साहस करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हिम्मत एक सामान्य व्यक्ति नहीं जुटा पाता, वो एक कवि अपने काव्य के माध्यम से करता है। और मैं तो सर इतना आपने सारगर्भित वक्तव्य कहा, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी आपके इस सारगर्भित वक्तव्य से लाभान्वित होंगे वो, और भविष्य में वो एक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपने सर समय दिया, आप ने इतना समय हमारे विद्यार्थियों को दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, इसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्रकार से अपने ज्ञान से हमें आलोकित करते रहें। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे उड़ान परिवार टीम मेंबर हैं, रेखा जी हैं, रीना जी हैं, डॉक्टर गायत्री शर्मा जी हैं, प्रदीप जी हैं, महाविद्यालय से जुड़े जितने भी जो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सर ये देखिए, मेरा ये मानना है कि आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी इस प्रकार की अगर कार्यशालाओं का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से एक भविष्य की या विद्यार्थियों को हम एक दिशा दे सकते हैं। और सबसे अंत में सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे प्रतिभागी हैं जो जुड़े हुए हैं इस कार्यशाला से और सीखने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। और उनका ये प्रयास सर जरूर सफल होगा। आप जैसे विद्वानों का मार्गदर्शन अगर उन्हें मिलता रहेगा तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर प्रभा मेहता जी, जो कि कविता की बहुत शी इज बेसिकली द ग्रेट इंस्पायर फॉर ऑल ऑफ अस। ये यूएस में है लेकिन वहां से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच प्रभा जी, जुड़ने के लिए भी और इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक्स अ लॉट। I'm speechless. Thank you so much. रीना जी का विशेष रूप से धन्यवाद, वो लगातार लगी हुई है और लगातार इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान टीम के सभी मेंबर्स जो इस कार्यशाला में जुड़े और एसएसएन टीम के सभी कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स और सभी सीनियर्स, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Yes.